First of all, I want to very hearty welcome to today's speaker, Shri Ravidev Gupta ji. Welcome, sir, and thank you for your education to us. You are our guru now. Thank you so much. Okay, and welcome to all the participants. This will be the fifth talk by Shri Ravi Gupta ji on this Universe of Spirituality Forum. The first four talks first was on Sanatana Dharma, the second was one on universal consciousness, the third one was on Ayodhya, the invincible Ayodhya, and the fourth one was Ramayana, the epitome of Sanatana Dharma. And as you must have heard, some of you were present for all the four presentations. The key message of those four talks by Shri Gupta ji, he can correct me if I'm wrong, was primarily to bring to us the 10 foundational principles of Sanatana Dharma, by which all of us, all humanity today and forever must live by. That was the whole fundamental principle, 10 principles of Sanatana Dharma. These are, as you know, without going into details, Dharma, Satya, Ahimsa, Asteya, Brahmacharya, Daya, Tapas, Santosh, Saucha, and Aparigraha. When we say Hinduism is a way of life, living by these 10 principles is what we mean. So Sanatana Dharma is not just for the Hindus, it is for the entire humanity, because these principles are applicable for useful, applicable, relevant for entire humanity. And it is in this spirit, very spirit, India believes in Vasudhaiva Kutumbakam. That said, today's presentation by Shri Gupta ji is on Pujya Swami Dayananda Saraswati, is the continuation of this very same theme of Sanatana Dharma. Swami Dayananda Saraswati firmly believed that knowledge contained in Vedas is divine and it could guide or solve all social problems. He advocated the return of Vedic scriptures as the ultimate source of wisdom and guidance. Swami Dayananda Saraswati conceptualized and started Arya Samaj. And the idea of taking Hinduism as practiced today to the original Vedic and Sanatana Dharma, all with 10 fundamental principles. Arya Samaj philosophy also has 10 principles, and I am sure Dr. Gupta, Shri Gupta ji will deal with that. So let us listen to Shri Gupta ji to know more about Swami Dayananda Saraswati's commitment to Vedic principles. He was also interested in social reforms. He had nationalistic ideals, and he has left a lasting impact on India's cultural and intellectual landscape. And we have to see how his legacy continues to resonate with those who seek a harmonious blend of traditions, knowledge, and progress, and how Arya Samaj is taking Swami Dayananda Saraswati's mission forward. We have earlier introduced Shri Ravidev Gupta ji. For those who are attending this event for the first time, briefly, Shri Gupta ji is the chairman of Ekal Vidyalaya Foundation of India, through which he supports educational and social causes. Shri Gupta ji is the chairman of Hindu Punarutthan Sangha, which works on making Bharat a self-reliant Rashtra governed by Sanatana traditions. He is president of Dakshin Delhi Veda Prachar Mandal. It is a federation of 50 Arya Samaj units in South Delhi, which propagates Vedic philosophy. And he is also General Secretary of Delhi-based Veda Samsthan, which does research in Vedas. So you can imagine his experience and his authority on the subject. Shri Gupta ji has published many articles in reputed journals and delivered lectures to propagate Sanatana Vedic philosophy. Professionally, Shri Gupta is a cost and management consultant and chairman of Viput Group of companies that provides technologies and materials to the construction industry. As I said before, for all of us, Shri Gupta ji has become a respected guru to guide and help us lead the way of life according to the 10 principles of Sanatana Dharma. Thank you very much. And Gupta ji, the floor is yours. Thank you so much. Yeah. Please go ahead. Yeah. Thank you, Ramesh Bhaiji, for having invited me again to this August gathering, which consists of the elite, because I too feel
little exalted to find an opportunity to share views with certain people who are really interested. So the audience may be small in number, but the quality matters. And even otherwise, everybody knows quantity and quality, they have an inverse relation. So if we are in a small quantity, so naturally we are definitely having an edge so far as quality is concerned, quality of the audience. So many things Ramesh Bhai Sahab has so generously told about my introduction, and I feel a little modest about it and rather feel humbled because my brief introduction would be that I am a student of Vedas. And this is in continuity, consecutively, we had 4 lectures earlier on different topics, though related topics. And today we are touching a topic which really is very close to my heart as well. And probably I am very sure at the end of this lecture, probably all the audience will also be one with me to feel that we have heard about a person who has not been heard of earlier. I thank my friend Dr. Anil Bhate, who has been instrumental in bringing us together. One of my friends, Atul Sehgal, is also there. I greet him and all the audience. Again, I give them my regards. I can see Yogendra Vadwaji. He is also a very close associate to me, and I appreciate his presence, and I feel that as if his presence gives me some sort of moral support. I'm grateful to him. And at the end of the lecture, I will be acknowledging presence of certain other friends who might have invited on our invitation. So we come to the topic. Today our topic is something which is really very crucial and very important as well. We are talking of a person whose stature is as tall as Himalaya. And he was the person who lived for truth and he died for truth. So when we can sum up his stature, I think the best two words could be what I suggested to Ramesh Bhai Sahab, that Maharshi Dayanand Saraswati is the truth personified. बंधुओं, जब बात सत्य की आती है तो सत्य कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है और हर कोई यही कहता है कि मुझे सत्य सुनने की इच्छा है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं और हम रोज देखते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उन सबके व्यवहार में रोज आता है, जब बात कोई सत्य की निकल के आती है तो बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्य की बात कहीं ना कहीं किसी के तो स्वार्थ में आड़े आती है। इसलिए सत्य की बात को सुनने की इच्छा रखना और सत्य को सुनना, ये दो अलग बातें हैं। और इसका अगर एक बहुत ही बर्निंग एग्जांपल देखना है तो हम अपने कोर्ट्स ऑफ लॉ को देखें। एवरीबडी fears putting hands on some scripture that I will speak the truth and nothing but the truth. But what you see, I think I may not call it globally, but in most of the countries, there is anything but the truth. तो ये बातें कहना सत्य को कि मुझे सत्य अच्छा लगता है, अच्छा तो सबको लगता है, पर सुनना साहत किसमें है, ये वास्तव में मनुष्य जाति में बहुत कम लोगों में है। और इसीलिए जब महर्षि दयानंद सरस्वती को एक आर्य समाज की स्थापना की, उनको आर्य समाज के नियमों का एक वो करना था कि क्या नियम होने हैं, तो उन्होंने एक ही नियम बड़ा सुंदर ऐसा बनाया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। मतलब उनकी
इच्छा स्पष्ट उसके अंदर में जाहिर हो गई कि वो ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे अनुयायी हों, मेरा नाम लेके इस दुनिया के अंदर में समाज के साथ संवाद करें, उनके अंदर में सबसे पहला ये गुण तो आवश्यक है कि वो सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहने चाहिए। उद्यत का मतलब ऑल प्रिपेयर्ड, एवरी टाइम रेडी, एवर रेडी। तो हमें ये अनुमान लगाना चाहिए कि जो लोग वास्तव में स्वयं को ऋषि का अनुयायी कहते हैं, ऋषि के सैनिक के रूप में समाज में उसकी मान्यताओं के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि लगाते हैं, वो वास्तव में पहले सत्य के ग्राहक होने चाहिए और उनके जीवन में सत्य का आचरण वास्तव में दिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो ऋषि के अनुयायी कहलाने के अधिकारी अभी नहीं बने। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने में गर्व का अनुभव होता है कि जब हम लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स भारत में राज्य करते थे और हम लोग गुलाम थे उनके, उस समय भी ये स्थिति थी कि उस समय की जो कोर्ट्स ऑफ लॉ थी, जो उस समय न्यायाधीश होते थे, जो जजेस होते थे, उनके अंदर में एक बहुत बड़ी फीलिंग थी। अगर कोई व्यक्ति एविडेंस देने के लिए आया है और उसने अपना परिचय दिया कि मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूँ, तो कोर्ट का ये सबसे पहला प्रिजम्पशन होता था कि अगर ये आर्य समाज का व्यक्ति है तो इसकी जो गवाही होगी, इसकी जो एविडेंस होगी वो सत्य होगी, झूठ नहीं होगी। ये कितना बड़ा प्रमाण है कि कोर्ट भी इस बात को विश्वास करती है। आर्य समाजी है तो झूठ नहीं बोलेगा। तो इसलिए आर्य समाजी होना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में ऋषि के अनुयायी कहलाने का अधिकारी होना ये एक दूसरी बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी ऐसे मित्र हों जो आर्य समाज से जुड़े रहे हों या जुड़े हुए हों, उनसे ये विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि हम अपने आचरण के विषय में विचार करें। दूसरा, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में ही एक ये कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा ब्लैंकेट वो दिया है सर्टिफिकेट ये कि जितनी भी विद्याएं हो सकती हैं, विद्याओं का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान के बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, शाखाएं हो सकती हैं। वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, वो हमारे धर्म के विचारों से जुड़ा हो सकता है, वो हमारे तकनीक से, इंजीनियरिंग से जुड़ा हो सकता है, वो आर्ट से हो सकता है, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के लिए होता है, युद्ध का विज्ञान उसमें हो सकता है, जितने भी ज्ञान होंगे, अगर सारे ज्ञान को, सत्य ज्ञान को ढूंढना है तो उसकी अगर कोई पुस्तक है तो एक मात्र पुस्तक वेद है। और ये वेद कब बनाए हैं ईश्वर ने? ये ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में ही जब मनुष्य जाति को उत्पन्न किया और धीरे धीरे उनके अंदर में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने ही कुछ ऐसे उस समय 4 ऋषियों को इस प्रकार का ज्ञान दिया। वो एक प्रकार का दिव्य ज्ञान था कि उनके माध्यम से ईश्वर ने मनुष्य जाति के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, आचार संहिता के रूप में वेदों का उन ऋषियों के माध्यम से प्रकाश किया। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझने की है कि वेद जो हैं ये केवल भारत के लोगों के लिए और भारत में भी केवल हिंदुओं के लिए ये सोचना, ये बहुत ही बड़ी संकीर्णता है और इतनी बड़ी अज्ञानता है कि हमारे सामने सोना हो हाथ में और हम सोने की उपेक्षा करके पीतल की ओर दौड़ते हों, तो ये हमारा स्वयं का दुर्भाग्य होगा। इसलिए किसी एक विद्वान ने, मैंने एक इस्लाम के विद्वान पीर मोहम्मद यूनिस हैं, उनका एक बार एक लेख पढ़ा। मैंने ये सोचा कि एक व्यक्ति इस्लाम का स्कॉलर है, वो ऋषि दयानंद के बारे में क्या लिख सकता है। लेकिन जब मैंने उसका पहला सेंटेंस पढ़ा, जो मैं आपके सामने अभी कोट करने वाला हूँ, उस सेंटेंस के बाद मुझे ये पता लगा कि वास्तव में उसने ये कहा कि जो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर मनुष्य बनने से पहले ही हिंदू, मुसलमान या ईसाई बन गया, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति मनुष्य तो नहीं बना, वो हिंदू बन के रह गया या मुसलमान बन के रह गया, ईसाई बन के रह गया,
और अगर ये सब बन के रह गया तो कहीं ना कहीं सत्य और असत्य का विचार जो है वो उसके जीवन में गौण विषय हो गया, मैंडेटरी नहीं रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति को सत्य के साथ जुड़ना है उसको अपने साथ ये लेबल लगाने की, ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वेद जो है ये मनुष्य मात्र के लिए हैं, और केवल सत्य का ज्ञान अगर है, सत्य विद्याओं की सारी जो पुस्तक है वो वेद है, तो वेद के अनुकूल जितने भी बाद में कालांतर में शास्त्र लिखे गए हैं वो शास्त्र सभी मान्य हैं, जिस सीमा तक वो वेदों के अनुकूल हों। दे कन्फर्म टू द प्रीचिंग्स ऑफ द वेदा। द मोमेंट दे डिफर we can certainly conquer, we can certainly conclude that they may be anything but the truth। जब इतना कठोर एक एसिड टेस्ट हमारे पास है, तो इतने कठोर एसिड टेस्ट के बारे में बार बार वेदों के बारे में बताना, ऐसा लगता है कि जैसे एक ही बात को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, और ऐसे लोगों के सामने रिपीट कर रहे हैं जो उसको सुनने में रुचि रखते हैं, न जानने की इच्छा रखते हैं, और अगर इच्छा भी रखते हैं तो फिर उनको पढ़ने का साहस नहीं करते हैं, और पढ़ भी लें तो साहस भी कर लें तो उस सत्य को स्वीकार करने का उनके अंदर में नैतिक बल नहीं है। और अगर पढ़ भी लें और नैतिक स्वीकार भी कर लें तो उस स्वीकार को कह के सबके सामने उस पर आचरण करने के अंदर में उनके चरित्र के अंदर में दुर्बलता है। बंधुओं, जब इतना भयंकर हमारे सामने एक परीक्षा की घड़ी हो, तो फिर उसके अंदर में हर व्यक्ति को ये कहना कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ और केवल सत्य ही सुनना चाहता हूँ, सत्य ही बोलूंगा, तो इसका मतलब निश्चित ये है कि उसका जितना भी कुछ ज्ञान होगा वो वेद पर आधारित होगा, और वेद पर आधारित ही नहीं होगा, उसका अगर व्यवहार आचरण है तो वो भी वेद की मान्यताओं के अनुकूल होगा। तो मुझे बार बार अब इस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस नीड्स नो एम्फेसिस अगेन एंड अगेन। इसके बाद वो ये कह रहे हैं पीर मोहम्मद यूनिस के साइंस भी ये कहती है कि कोई भी चीज, हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हर चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। इसका मतलब एक प्रकार से पतन की ओर उन्मुख होती है। लेकिन अगर उस चीज को वापस ऊपर की तरफ चढ़ाना हो तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। जैसे ग्राउंड वाटर को भी अगर हमने वाटर टैंक में भरना है तो पहले हम सक्शन करते हैं, और सक्शन करके फिर उसको पंप करके ऊपर तक टैंक में ले जाते हैं। इसी तरह से वायु का है, इसी तरह से कोई भी चीज फेंकनी है तो पूरी ताकत लगा के ऊपर फेंकनी होती है। ऊपर फेंकने के लिए तो ताकत लगती है, और नीचे वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खुद ही आ जाती है। तो जितने भी हमारे इस संसार के अंदर मनुष्य जाति के उपकार के लिए महापुरुष समय समय पे उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने केवल यही काम किया है कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट पर फोर्स उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज को ऊपर तक पहुंचा के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने का प्रयास किया। और उसी श्रृंखला में अगर आज हम महर्षि दयानंद को स्मरण करते हैं, तो मैं उसके अंदर आपके सामने महर्षि अरविंद के दो तीन वाक्य को कोट करना चाहता हूँ। हम लोगों ने महर्षि अरविंद का नाम सुना है, जिन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की है, और उनके साथ में उनकी सहधर्मिणी के रूप में श्री मां थी जो फ्रेंच मूल की थी। श्री अरविंद ने जिस समय ये धर्म की ओर उनकी रुचि हुई, पहले वो स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन बाद में परिस्थितियों में उनको आया कि मुझे योग बल से साधना करके मनुष्य जाति को कोई राह दिखानी है। तो फिर उन्होंने वेदों का भी अध्ययन आरंभ किया। उस सीमा तक तो नहीं किया जितना ऋषि दयानंद ने किया, लेकिन जितना भी किया उनके हृदय में वेदों के लिए बड़ी आस्था, और साथ में ऋषि दयानंद के लिए जो वाक्य उन्होंने बोले हैं, मैं सिर्फ वो आपके सामने कोट कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जितनी ये पर्वतों की श्रृंखला होती है, जैसे हमारे हिमालय है, हिमालय के अंदर बहुत सारी चोटियां हैं, और कोई कितनी हाइट की है, कोई कितनी हाइट की है, उसके अंदर अगर कोई सबसे बड़े हाइट की है मैक्सिमम, तो उसको हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं। सागर माथा जिसको नेपाली भाषा में बोलते हैं, वहां का ओरिजिनल नाम है। तो ऋषि अरविंद क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से
पर्वतों की श्रृंखला में हिमालय एक दिखता है, और उस हिमालय के अंदर में भी जितनी भी उसकी चोटियां हैं, उनमें सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट लगती है। इसी प्रकार से जितने भी मेरी जानकारी में आधुनिक काल में इस देश के अंदर ऋषि मुनि हुए हैं भारत में, उनके अंदर अगर मैं सर्वोच्च किसी को देखता हूँ तो स्वामी दयानंद को उस एवरेस्ट की चोटी के अनुकूल देखता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आत्मबल स्वयं मूर्तिमान होके खड़ा हो गया हो पर्वत के रूप। जो हम अभी ट्रुथ पर्सोनिफाइड कह रहे हैं, वो साथ में अरविंद क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में सत्य होगा उसी में आत्मबल होगा। और आत्मबल केवल उसी के व्यक्ति के अंदर होता है जो ये जानता है कि मेरी कथनी में और मेरी करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो समाज में किसी भी व्यक्ति के सामने भय नहीं खाता है। वो निर्भीक होता है हर परिस्थिति के अंदर, क्योंकि उसको मालूम है जो कुछ मैंने कभी आज से 20 साल पहले भी बोला होगा, अगर आज भी मैं वही बोलूंगा तो वो क्योंकि पहले सत्य था तो आज भी वही सत्य होगा। उसको ये सोचने का कारण ही नहीं होता कि मैंने आज से कुछ देर पहले क्या बोला था। और उसी के लिए वो कह रहे हैं कि आत्मबल मूर्तिमान होके पर्वत के रूप में जैसे खड़ा हो गया हो, ऐसा मैं स्वामी दयानंद को देखता हूँ। आगे स्वामी दयानंद के लिए एक वाक्य और बोलते हैं जो आज हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। उन्होंने ये कहा कि आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता, जिसको हम बोलते हैं कि धर्म और व्यवहार। आध्यात्मिकता का मतलब जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म संबंधी विषय है, और क्रियात्मकता का जो हमारा एक्शनेबल पॉइंट्स है, हमारा जितना लाइफ का एक्शन जितने भी हैं, कर्म जितने हैं मेरे, तो इसको कहिए धर्म और कर्म। इन दोनों में इनको ये माना जाता है कि ये विपरीत होते हैं। अगर आप धर्म के अनुसार कार्य करें तो दुनिया में आप दुनियादारी नहीं निभा सकते, और दुनियादारी निभाने लगते हैं तो धर्म से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद एक इस प्रकार के अद्वितीय है और जैसे कहते सेकंड टू नन ऐसे उदाहरण हैं कि आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता, इन दोनों शब्दों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करना मुझे दयानंद की सही परिभाषा प्रतीत होती है। मैंने अरविंद के शब्दों में आज का जो हमारा शीर्षक है, जो हमारा टाइटल है ट्रुथ पर्सोनिफाइड, उसका एक छोटी सी भूमिका आपके सामने अभी रखी है। अब हम इसको धीरे धीरे परत दर परत ये देखने की चेष्टा करेंगे कि ऋषि दयानंद को हम ये इतना महत्व क्यों देना चाह रहे हैं। मैं फिर पीर मोहम्मद यूनिस को कोट करता हूँ कि क्योंकि वो एक इस्लाम के स्कॉलर थे, और ये माना जाता है कि इस्लाम का बाकी किसी के लिए कोई बहुत अच्छा मन में भाव नहीं होता, लेकिन जो बंधुओं सब जगह विद्वान होते हैं उन विद्वानों को तो ज्ञान होता है। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो अपने जीवन में एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसको हम कालजयी ग्रंथ बोलते हैं। कालजयी का मतलब है जो कितना भी समय बीत जाए इस सृष्टि के अंदर में कभी पुराना नहीं पड़ेगा, उसने सब काल को जीता हुआ है। ऐसा कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंदर वो बड़ी सुंदर उसके प्रीफेस में लिखते हैं भूमिका में कि मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं, मैं वही बात जो वेदों में सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल दुनिया के सामने उसको प्रकाशित करने के लिए उसके अर्थों का प्रकाश कर रहा हूं। और इसलिए पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन से सत्य? वेदों में जो मंत्र हैं, वेदों में जो ऋचाएं हैं, उनका जो अर्थ हो सकता है, अर्थ के अंदर अनर्थ भी होता है, और ये बहुत हुआ है। अभी हमारे लेक्चर से पहले वेदों के बारे में थोड़ी चर्चा थी, रमेश जी ने की थी, और मैंने उसी समय अपना ये एक उसके ऊपर में टिप्पणी की थी। मैंने ये कहा था कि वेदों के बारे में जितनी जानकारी है उससे ज्यादा हमारी भ्रांतियां हैं। तो ऋषि दयानंद ने उसको स्पष्ट किया कि जितने भी दुनिया के अंदर मत हैं, मत का मतलब किसी व्यक्ति का मत, ईश्वर का मत नहीं होता है, ईश्वर का तो बनाया हुआ धर्म होता है। तो जितने भी मत हैं और उस मत के हिसाब से जितने भी पंथ बने हैं, और चूंकि वो एक से अनेक हो गए हैं इसलिए हम उनको मतांतर भी कहते हैं और विभिन्न पथ कहते हैं। तो जब विभिन्न पंथों और जितने भी मत हैं उनके अंदर में सभी में विद्वान व्यक्ति उपस्थित हैं, लेकिन किसी न किसी स्वार्थ के कारण या किसी न किसी पूर्वाग्रह के कारण
या कई बार अपने अज्ञानता के कारण वो अधर्म की ओर झुक जाते हैं। ऋषि दयानंद कभी ये नहीं कह रहे कि दुनिया के अंदर सत्य का केवल एक मैं ही चैंपियन हूं। वो तो हर आदमी को सर्टिफाई कर रहे हैं, एक तरीके से उसको ये टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, क्रेडेंशियल दे रहे हैं कि कभी किसी व्यक्ति ने अगर एक मत का नए प्रादुर्भाव किया है तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता वो। लेकिन वो वेदों में उक्त धर्म को जानते जानते भी उसके बाद में किसी न किसी स्वार्थ के कारण या किसी अपने पूर्वाग्रह का मतलब है जो पहले हमारे प्रेजुडिसेस होते हैं उसकी वजह से, या कोई और ऐसा हो गया जिस विषय की जानकारी नहीं है, तो वो अधर्म की ओर आचरण करने लगता है। अब सबसे पहला तो एनालिसिस अगर हम बड़ा एक जिसको कहें वो एसिड टेस्ट करते हैं तो उसमें सीधा ये संबंध आता है कि जब ईश्वर ने सत्य के सारे समाहित करके वेदों की रचना करके सारे मनुष्यों के लिए एक धर्म निश्चित कर दिया, जिसमें आ गया कि ना हिंदू का मतलब है, ना मुसलमान का मतलब है, ना ईसाई का है, केवल क्या है कि मैं मनुष्य हूँ। ईश्वर ने मुझको मनुष्य बनाया है, मैं मानव हूँ और मननशील हूँ, इसलिए मैं मनुष्य कहलाता हूँ। मानव हूँ तो मेरा धर्म क्या है? केवल मानव धर्म है। अब मानव धर्म है तो फिर मेरा तो और कोई इसके अलावा धर्म ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन वही आ जाता है कि हम किस धर्म की पालना कर रहे हैं। और जब स्थिति ये होती है कि हम धर्म की पालना करते करते अपने ही मतों का प्रचार करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि हम धर्म से तो कहीं दूर भटक ही गए हैं। और धर्म से डेविएट करने के बाद में जब अपने मत पे आते हैं, हमारा मत तो हमारा व्यक्तिगत मत हो सकता है और आज वो मत है, कल को बदल भी सकता है। लेकिन अगर वो ईश्वर का बनाया हुआ धर्म है तो वो सृष्टि के आदिकाल में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बनाया था। और ईश्वर स्वयं जो है वो सनातन है। आदि काल में जैसे ईश्वर का कोई स्वरूप बदलता नहीं है और उन्होंने जो धर्म बनाया वो भी सनातन है। सनातन का मतलब वही है जो ना नीतन हो, ना नूतन होता है, ना पुरातन होता है, केवल सनातन होता है। और अगर उसको स्थूल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कहा जाए तो वो नित नूतन ही होता है। जैसा मैंने संभवतः पिछली बार सनातन के विषय में अपने व्याख्यान में कहा था और एक उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से हम आकाश में सूर्य को रोज सुबह को उदय होता देखते हैं, रोज शाम को उसको हम अस्त होता देखते हैं। ये क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं और वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और केवल चारों ओर ही नहीं घूमती, अपनी भी कीली पे चारों तरफ चारों ओर घूमती है। तो किसी भी काल में पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने होता है और आधा हिस्सा सूर्य के पीछे होता है। जैसे मैं भारत में हूँ इस समय, तो यह रात्रि काल है, सूर्य अस्त हो चुके हैं। आप लोग अमेरिका में इस समय हैं क्योंकि ये दूसरा दूसरा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि आधा स्फीयर। तो मैं जिस हेमिस्फीयर में हूँ उसके अंदर में सूर्य अस्त हो चुके हैं। आप जिस हेमिस्फीयर में हैं उसके अंदर सूर्य उदय हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि सूर्य कोई भिन्न है? क्या वो उदय होते हैं? क्या वो अस्त होते हैं? ना वो उदय होते हैं ना अस्त होते हैं। वो केवल हमको हमारी अपनी गति के कारण उदय और अस्त होते दिखते हैं। तो हमको निरंतर नूतन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा है, अन्य नक्षत्र हैं, जितने ईश्वर के बनाए हुए कॉन्स्टलेशंस हैं, ईश्वर का बनाया हुआ जो कुछ भी है वो सनातन है। उसके रूप परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए ये बताया जाता है कि 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स जिनसे ये सारी सृष्टि बनी है वो भी ईश्वर ने अनादि और अनंत बनाए हैं। आप उनको नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते। आप केवल ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर में विकृति उत्पन्न करके उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करने के लिए फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर की बनाई हुई हैं, मनुष्य बना ही नहीं सकता, उन्हीं को हम सनातन की श्रेणी में लाते हैं। जब धर्म की बार बार बात आती है, मैंने पहले भी कहा था, मैं केवल आपको प्रसंग के वश जो है रिपीट कर रहा हूँ कि धर्म के साथ सनातन जो है ये एडजेक्टिव है। धर्म तो संज्ञा है जो ईश्वर ने बनाई। सनातन इसलिए है कि वो आदिकाल से, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, जिस स्थिति में थी आज तक वही चल रही है। तो जो चीजें परिवर्तनशील हैं वो धर्म नहीं है, और जो अपरिवर्तनीय है केवल वही धर्म है। पर लोगों ने, क्योंकि ईश्वर ने स्वतंत्रता भी दी है कर्म करने की,
साथ में बुद्धि का संयोग भी दिया है। तो ये मनुष्य मात्र के अधिकार में आ गया कि वो उस बुद्धि का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। ईश्वर ने फिर एक कर्मफल व्यवस्था रखी है कि ठीक है, मैंने तुमको बुद्धि भी दी है और दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ योनि के रूप में तुमको जन्म दिया है। अपेक्षा तो मैं तुमसे यही करता था कि ईश्वर की संतान होने के नाते, एक दिव्य विभूति होने के नाते तुम केवल वही काम करते जो मैंने तुम्हारे माता पिता होने के नाते, क्योंकि हम ईश्वर को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ईश्वर ही हमारी माता भी होते हैं, हमारी पिता भी होते हैं। और ऐसे पिता की संतान होने के नाते पिता की जो स्वाभाविक इच्छा होती है अपनी संतान से, वो तो यही होती है कि मेरी संतान आदर्श हो, मेरे दिए हुए जो मूल्य हैं उन मूल्यों के ऊपर में आचरण करे, पालन करे। लेकिन जो कर्म करने की स्वतंत्रता दी है बंधुओं, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा परीक्षण ईश्वर ने मनुष्य जाति के साथ किया। और उसका परिणाम क्या होता है? सुखद परिणाम तो यह है कि इसके अंदर बहुत महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर लोग हुए हैं जो वेदों के अनुसार जिए हैं और सृष्टि का कल्याण करके अपनी जीवन की यात्रा को पूरा किए हैं। और इसके विपरीत बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेदों की मान्यताओं को तिलांजलि देके स्वयं को आर्यत्व से गिरा के राक्षसी प्रवृत्ति का अपने अंदर में आचरण लाने के बाद में हमेशा से अपने इस सृष्टि के अंदर में कर्मों के कारण निंदनीय रहे, त्याज्य रहे हैं और समाज के लिए केवल और केवल कष्ट का कारण बने हैं। इस प्रकार के उदाहरण हमको त्रेता युग में श्री राम और रावण के रूप में दिखते हैं। हम श्री राम को देखते हैं जो सनातन धर्म के एक प्रकार से मूर्तिमान स्वरूप है। जिस प्रकार से हम महर्षि दयानंद को कह रहे हैं कि सत्य का मूर्तिमान स्वरूप, उसी प्रकार से हम त्रेता युग में श्री राम को सनातन धर्म का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। और बिल्कुल उसके विपरीत उन्हीं का जो प्रबल शत्रु है रावण, वो आर्यत्व से गिर के अंततः राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त करके एक ऐसा व्यक्ति हो गया कि जिसने सनातन धर्म को तिलांजलि देके एक ऐसे विकृत आचरण का पालन किया कि संपूर्ण समाज विनाश के कगार पर पहुंचने लगा। और इसकी भयंकर परिणति हम द्वापर में देखते हैं, श्री कृष्ण के काल में। उसमें तो केवल यही हुआ कि अधिसंख्य लोगों ने उन वैदिक मान्यताओं पर आचरण करना छोड़ दिया। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने चर्चा की थी, वेदों की बात सब करते हैं लेकिन वेदों को जानना कोई नहीं चाहता। महाभारत तो इसका स्पष्ट प्रमाण है। महाभारत का हर व्यक्ति वेदों का ज्ञाता था, थोड़ा बहुत जानकारी रखता था। और कौरवों के दरबार में जितने भी बड़े बड़े महारथी थे वो सब लोग जानते थे कि धर्म की व्याख्या क्या है। लेकिन व्याख्या क्या करते थे? वो व्याख्या अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, बाय कन्वीनियंस उसकी व्याख्या अपने स्वार्थ के साधन के लिए करते थे। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग एक निजी धर्म था। भीष्म पितामह अपने धर्म से बंधे हुए हैं, द्रोणाचार्य अपने धर्म से बंधे हुए हैं। दुर्योधन कहता है जानाति धर्मम नैचे में प्रवृत्ति, जानाति अधर्मम नैचे में निवृत्ति। तो स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि कृष्ण मुझे मत समझाओ, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म भी मैं जानता हूं पर मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? जब धर्म भी व्यक्तिगत हो गए और हर आदमी के अपने अपने हो गए, तो स्थिति क्या हुई? यही भयंकर विनाश लीला हुई जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो बंधुओं, त्रेता से महाभारत तक का जो हमारे मूल्यों का क्षरण हुआ, इससे जर्नी ऑफ डी जनरेशन। और उसके बाद का जो ये कलयुग जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर में तो रजोगुण का और तमोगुण की इतनी प्रधानता हो गई है कि सतोगुण तो लगभग गौण होता चला गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इन दिनों हम देख रहे हैं 5,000 वर्षों का, लगभग 5500 वर्षों का ये कालखंड है। इसके अंदर में धर्म की दुहाइयां देके बहुत लोगों ने अपने 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 मत निर्माण किए, और इतने मत निर्माण किए कि मतांतरों की बाढ़ आ गई। और स्थिति क्या हो गई कि सब एक दूसरे के विरुद्ध ईश्वर के ऊपर में अपना एकाधिकार जो है वो प्रस्तुत करने लगे। हर आदमी बात ईश्वर की करता है लेकिन अपना जो व्यवहार और अपना मत देता है वो ईश्वर के धर्म के विपरीत देता है। तो परिणाम क्या हुआ? धर्म के नाम पे इतना पाखंड और इतना हमारे यहाँ पे कुरीतियां, अंधविश्वास चालू हो गया कि उसके बाद में स्थिति क्या हो गई? जो एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है और लोग बड़ी मासूमियत से इनोसेंटली बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
अरे बंधुओं, जरा विचार तो करें, मजहब कहते किसको है पहले तो ये समझें। जिसको हम मत कहते हैं, पंथ कहते हैं, वही मजहब होता है। क्योंकि मजहब धर्म नहीं होता। अंग्रेजों ने उसके लिए टर्म कॉइन किया, रिलीजन। पर रिलीजन इज अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। इट्स नॉट एनीवेयर क्लोज टू द रियल डेफिनेशन ऑफ धर्म। उसका कजिन भी नहीं है, लेकिन उनको इससे ज्यादा मालूम भी नहीं है। तो इंग्लिश मे बी ए वेरी कॉम्पिट आई शुड से competent language, but very poor in interpretation and very poor in comprehension too. तो वो आज तक धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं ढूंढ सके हैं। और मैं आप लोगों के लिए बड़ी विनम्रता से बता रहा हूँ, हम लोग धर्म के लिए जब रिलीजन शब्द प्रयोग करते हैं तो बंधुओं, आप एक सेकंड ग्रेड वर्ड जो है उसके रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। आगे से हम सभी लोग इस बात का अपने मन में संकल्प लें कि जब भी बात धर्म की करें तो उसको रिलीजन मत बोलिए। अगर आप रिलीजन बोल रहे हैं तो डाउनग्रेड तो आप उसी समय, और डाउनग्रेड कर रहे हैं तो फिर अपग्रेड करने के लिए आपके पास में कोई और विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए धर्म को केवल धर्म बोलिए, वेद को केवल वेद बोलिए, और उसको किसी चीज के साथ कंपेयर मत कीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि केवल ये मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। जितना ये युद्ध हो रहा है आज, हम ब्राह्मणिक रिलीजन्स के अंदर में ही धर्म देख रहे हैं आप, कितना युद्ध हो रहा है। 3 धर्म उसके अंदर में माने जाते हैं, जिसको हम धर्म नहीं कहते, पंथ है। और वो क्या है? एक ईसाई है, एक यहूदी है, और एक उसके अंदर में इस्लाम है। कहने को ये तीनों एक ही खानदान के कजिन्स हैं आपस में। ये अब्राहमिक उनके फादर हैं, फादर अब्राहिम। और तीनों के अंदर में कितनी भयंकर है जो आज आप देख रहे हैं। आज आप गाजा के अंदर में इजराइल के और हमास के युद्ध को देखिए। उसके साथ में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका जो ड्यूबियस रोल है उसको देखिए। तो वो आपस में जब इतना भयंकर लड़ते हैं, उन 3 के अतिरिक्त जो बाकी समाज है, जिसको हम मुख्य रूप से इस दुनिया के अंदर हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, उनके लिए किस प्रकार का ये व्यवहार और घृणा का आचरण करते हैं, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जब वो अपनों को नहीं छोड़ते, तो आप जैसे व्यक्ति को, जिसको वो खुलेआम काफिर बोलते हैं, उसको छोड़ने का तो उनके यहाँ पे कोई विधान ही नहीं है। उनका तो ये धार्मिक काम है कि जो वह व्यक्ति काफिर है, वो कुफ्र में मुब्तिला है, उनको तो किसी भी प्रकार से ठीक समझा के सही रास्ते पे लाना चाहिए। नहीं लाते हैं तो किसी भी प्रकार से उनको दुनिया से उठा देना चाहिए। इसी को वो जिहाद बोलते हैं, जिसको होली वार बोलते हैं। तो मेरा ये कहने का बार बार विषय क्या है? जो सत्य से भटक रहे हैं, उन्होंने अपने अपने मजहब, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने पंथ, अपने अपने मत, और अपने मालूम नहीं कितने, जिसको हम बिलीफ बोलते हैं, अपनी आस्था बोलते हैं, मेरा विश्वास बोलते हैं, जब उसके अंदर में मेरा आ जाता है तो समझ लीजिए वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। वो ईश्वर का बनाया हुआ धर्म नहीं है। और धर्म नहीं है इसीलिए अधर्म का आचरण करते हुए उनके स्वार्थ आपस में जरूर टकराएंगे। और जिस क्षण स्वार्थ टकराएंगे, तो निश्चित रूप से उनके भीतर कलह भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा, और एक दूसरे को मिटाने की प्रवृत्ति भी होगी। ये केवल किस कारण से कि वो वेदों से दूर चले गए हैं, सत्य से दूर चले गए हैं। महर्षि दयानंद का जब आविर्भाव हुआ तो वो केवल और केवल एक ही उद्देश्य से उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर एक इतना बड़ा संकल्प लिया। बात जब सत्य की आरंभ होती है ऋषि दयानंद से, हम उसको कोरिलेट करते हैं। छोटी सी घटना से आरंभ होता है ऋषि दयानंद के जीवन का ये परिवर्तन, और वहां से शुरू होती है उनकी यात्रा सत्य की खोज की, जो सब लोग जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उनके पिता शिव शिव जी के उपासक थे। शिवरात्रि के दिन सारा परिवार, जिस तरह से सारा समाज उपवास रखता है, रात्रि भर जागरण करके शिव की पूजा करता है, इसी प्रकार से वो बालक मूल शंकर, वो वहां पर अपने पिता के साथ उसी प्रकार से उपवास करके जागरण कर रहा। वो ये देख रहा है वहां पे कि जो कुछ हो रहा है, वो शिव जी की जो पिंडी है, उस पिंडी के ऊपर में कुछ चूहे उछल कूद कर रहे हैं, उसको अपवित्र भी कर रहे हैं। और वो जो शिव, जिसको सर्वशक्तिमान शिव बोला जाता है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से उस छोटे से प्राणी का किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं कर रहे हैं।
तो छोटे से बालक मन में एक शंका उत्पन्न होती है। बंधुओं, ये समझने का प्रयास कीजिए, ये कोई बड़ी मामूली सी घटना है जिसको हम इतना बड़ा बार बार उसकी चर्चा करते हैं, और आर्य समाज के लोगों को जब ऋषि दयानंद के बारे में बताना होता है तो इस छोटी सी घटना बताने की बाध्यता अनुभव होती है। लेकिन समझने की बात है कि इतनी छोटी सी मामूली घटनाएं तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति के रोज होती हैं। लेकिन किसके मन में शंका उठती है, किसके मन में जिज्ञासा उठती है? शंकाएं तो बहुत लोगों के मन में उठती हैं, लेकिन जिज्ञासा उठने का मतलब सत्य की जानने की एक बहुत प्रबल उत्कंठा, ये सामान्यतः किसी व्यक्ति के मन में नहीं होती। शंका करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जब जिज्ञासा कोई योग पुरुष करता है, जिसको ईश्वर ने किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी के अंदर में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ही भेजा हो, तो ऐसी दिव्य जो आत्मा है उसकी जिज्ञासा साधारण नहीं होती। उन्होंने उस जिज्ञासा की शांति के लिए तुरंत उनके मन में ये अविश्वास हो गया कि ये वो शिव नहीं है जिसके लिए पिताजी ने मुझको कहा, इसलिए मैं इनकी उपासना करूं, यह मेरे योग्य नहीं है। प्रश्न यहाँ पे मूर्ति पूजा का नहीं था, प्रश्न यहाँ पे सत्य शिव का और असत्य शिव का था। उन्होंने घर छोड़ दिया। उसके बाद जो जो परिस्थितियां हुई, सत्य है, सत्य की खोज के लिए कितने गुरुओं की शरण में गए। जहां भी उनको कोई पता लगा कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े श्रद्धा से उनके चरणों में जाके उस विद्या को ग्रहण करने का किया। लेकिन कहीं भी मन के अंदर में शांति नहीं हुई, लगा नहीं कि मुझे सत्य ज्ञान मिला है। और सत्य ज्ञान की उसी पिपासा में, उसी जिज्ञासा में अंततः उनका जो यह वो था, क्योंकि जब when there is a will there has to be a way also, तो उनको स्वामी विरजानंद जैसा अद्वितीय गुरु मिल गया। उस गुरु ने इनके जीवन के अंदर में चमत्कार कर दिया। सारे जीवन के अंदर में एक ऐसी क्रांति हो गई, उनको लगा कि जिसकी मैं खोज में निकला था, आज इस आयु के अंदर आके मुझको ये सत्य प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी प्रेरणा से उनको वेदों के ओर उन्मुख किया, और गुरु विरजानंद से उनको गुरु दक्षिणा का आश्वासन देके कि मैं अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए, इस मानव जाति के लिए उनको अंधविश्वास और पाखंडों से दूर करने के अंदर में लगा दूंगा। इसके लिए भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। ऐसा अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा का संकल्प लेके वो एक ब्रह्मचारी एक यात्रा के लिए निकल पड़ा। वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। आश्चर्य का विषय क्या है, सामान्यतः लोग किसी न किसी एक आध ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं, संभवतः उनकी क्षमता दुनिया के अंदर किसी अन्य व्यक्ति से की ही नहीं जा सकती। उन्होंने केवल वेदों का ही अनुशीलन नहीं किया, चारों वेदों को पढ़ा पूरा। उनमें से कुछ के भाष्य भी करने आरंभ किए अपने जीवन काल में, सबके नहीं कर पाए। उसके अतिरिक्त उन्होंने ऋग्वेदी भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बनाई, आर्य अभिविनय बनाया, संस्कार विधि बनाई। इस प्रकार लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। और सत्यार्थ प्रकाश जो एक ग्रंथ बनाया, उसके अंदर में लगभग एक वेदों का सारा सार 18 समुल्लास के अंदर में ऐसा भर के रख दिया कि जैसे है कोई व्यक्ति सागर को गागर में भरने का प्रयास कर रहा हो। सबसे विलक्षण बात क्या है, जिसको मैं आपके सामने बड़े गर्व से कहने की इच्छा रखता हूँ, केवल उन्होंने भारत के अंदर प्रचलित जितने ग्रंथ हैं और जो भारत के अंदर जिनका जन्म हुआ है, उन्हीं का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने उन ग्रंथों का भी अध्ययन किया जिनको भारत के अंदर में जन्म नहीं मिला, जैसे कि ईसाई है, इस्लाम है, यहूदी है। इन सब का भी उन्होंने इतना विशद अध्ययन किया, तो जिस व्यक्ति ने केवल अपने देशीय ग्रंथों का नहीं, विदेशी ग्रंथों का भी इस प्रकार का सघन अध्ययन करके उसके अंदर में से सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका एक गंभीर विश्लेषण करके उसको लेखनीबद्ध किया। बंधुओं, लेखनीबद्ध करने के लिए बड़ा साहस चाहिए। उसमें बोलते हैं ना कि आप मुंह से तो कुछ भी बोलिए, बट राइटिंग मेक्स यू एग्जैक्ट। लिखने के टाइम पे बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि आपकी लेखनी, जो आपका लिखा गया, उसके लिए आपकी जवाबदेही आपके जीवन काल में भी रहेगी, और जीवन के बाद भी आपके अनुयायियों के लिए भी उसकी हमेशा के लिए उसकी जवाबदेही रहेगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो इनडिफेंसिबल हो, जिसके अंदर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई तर्क न दे सकें, उसको कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी लेखनी से लिखता नहीं है।
पर ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर केवल चिंतन और मनन ही नहीं किया। उनका जब दृढ़ विश्वास हो गया तो इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने उसको सत्य के रूप में लेखनीबद्ध करके सारे समाज के कल्याण के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर में उन्होंने बड़ा स्पष्ट उसकी भूमिका में लिखा कि मेरा इस सत्यार्थ प्रकाश को बनाने का केवल मेरा उद्देश्य क्या है। वो ये लिख रहे हैं, यद्यपि मैं आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही मैं दूसरे देशस्थ व मतों वालों के साथ भी बरतता हूँ। कितना सत्य का आग्रही एक व्यक्ति हो सकता है। आज तक ऋषि दयानंद के तुल्य दूसरा तो कोई व्यक्ति, ना कोई व्यक्ति बता सकता है, और ना ही किसी के अंदर में इस तरह से बनाने की सामर्थ्य होगी। तो एक उक्ति को कहते तो हैं लोग कि न भूतो न भविष्य थी। उसमें कई दफे लोग ये कहते हैं कि भूत की बात तो आप कह सकते हैं, भविष्य के लिए ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, आज ऋषि दयानंद को 200वीं जयंती मना रहे हैं। उनके मृत्यु को हुए भी, आर्य समाज की स्थापना को हुए भी 150 साल हो गए हैं। लेकिन इस 150 साल में भी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, तो आज तक ना दुनिया में, भारत में क्या, भारत भी बाहर भी कोई ऐसा नहीं दिखा जिसने केवल और केवल एक ही मत का नहीं, अपने देशी और विदेशी सभी मतों का इतना सघन अध्ययन करके उसके अंदर में दूध और पानी अलग अलग करके रख दिया। इसको कहते हैं नीर और क्षीर का विवेक। और इस नीर क्षीर के विवेक के लिए हमारे पुराणों में तो ये कहा जाता है कि ईश्वर ने केवल एक हंस को, एक ऐसा पक्षी है जिसको ये विवेक दिया है। अब ये तो एक कल्पना है, और कल्पना में कुछ यथार्थ का पुट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य जाति के अंदर मानस हंस हो सकता हो, तो उसके सदृश केवल और केवल ऋषि दयानंद ठहरते हैं, जिनके अंदर में जन्मजात ये नील और क्षीर का ऐसा विवेक इतना प्रबल रूप से विद्यमान था कि उन्होंने हर व्यक्ति के और हर पंथ के, हर मत के ग्रंथों का पूरा विलोड़न करके उसमें से बता दिया कि सत्य का इसके अंदर अंश कितना है, वही तो ग्राह्य है। जो इसके अंदर असत्य है, उसको वो त्याज्य मान के उन्होंने उसकी स्पष्ट घोषणा कर दी। साथ में वो लिख रहे हैं स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा तो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। और स्पष्ट लिखने के साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जैसी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी विद्या, और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित कर देना, ये मैंने उत्तम समझा है। ये चार की बात मैं किसकी कह रहा हूँ कि जो उन्होंने है 18 समोल्लास में, बाद के 4 उत्तरार्ध में समोल्लास लिखे हैं, वो विभिन्न धर्मों के विषय में लिखे हैं। एक वो समोल्लास तो उन्होंने केवल जो देशी धर्म थे, जितने भी पंथ थे, उनके बारे में लिखा। उसके अंदर में सभी जितने भी पंथ हमारे भारत में प्रचलित हैं, मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उन सब के बारे में बड़ी स्पष्ट चर्चा। उसके अतिरिक्त 3 जो है वो उन्होंने उनके बारे में लिखा है जो इस देश के अंदर उत्पन्न हुए, वो इस्लाम है, ईसाई है और यहूदी है। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य धर्म है उनके बारे में भी, तो उन चारों के बारे में लिखा है। चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से मुझको जो बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित करना, ये मैंने अपना उत्तम समझ के कर्तव्य पालन किया। साथ में क्या कह रहे हैं कि सभी पंथों के अंदर में विद्वान है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन अपने किसी स्वार्थ के या पूर्वाग्रह के या अज्ञानता के कारण वो सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर प्रवृत्त होकर अधर्म की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इस मानव समाज की विडंबना है। और मेरी ये इच्छा है, और मेरी इच्छा ये है कि मनुष्य जाति मेरे इस सत्य असत्य के निर्णय का यथारूप इसका अध्ययन करके, इसके सत्य के ऊपर विचार करके अपने असत्य को छोड़ने के लिए और सत्य को ग्रहण करने के लिए
अपने चरित्र के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करके संकल्प शक्ति निर्माण करें। इतनी सुंदर कल्याणकारी भावना से जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और मनुष्य जाति के जीवन का कोई अंग उसके अंदर में ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो उन्होंने, जिसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा ना हो। और वो सारी की सारी चर्चा किसके आधार पे है? वो केवल और केवल वैदिक मान्यताओं के आधार पर लिखी हुई बाद में जितनी भी संहिताएं हैं, जिसके अंदर बहुत मुख्य रूप से मनुस्मृति जो संहिता है उसका उन्होंने प्रचुर उपयोग किया है। और साथ में ये भी कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद का जो एक आदेश है उसको भी उन्होंने उसमें घटाने का प्रयास किया। तैत्तिरीय उपनिषद का एक आदेश है जिसको मैं, जो उसका संस्कृत में मंत्र है उसको तो मैं पढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन अर्थ बता रहा हूँ कि जब जब धर्म और ज्ञान की गहराई में जुटने की विशेष इच्छा जागृत हो तो मैं मनुष्य जाति को एक परामर्श देता हूँ कि हमसे भी अधिक ज्ञानी, निष्प्रिय और धार्मिक आचार विचार वाले गुरु जहां भी हों वहां उनके पास जाकर श्रेष्ठ चरित्र की शिक्षा प्राप्त करो। कभी कभी उन्होंने, स्वामी दयानंद ने मिथ्या अभिमान नहीं किया। उन्होंने ये कुछ कहा ही नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो ही केवल सत्य है। उन्होंने तो कहा कि मैं तो उस सत्य की बात करता हूँ जो वेदों में लिखा है, और वेदों के अंदर केवल सत्य है, सत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने कोई अपना मत या पंथ नहीं चलाया है। इसलिए है वो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि मैं बाबा वाक्यम सत्यम। बहुत से जितने भी हमारे बाद में है, उत्तरार्ध में इनके परिवर्ती गुरु हुए हैं, जितने भी हम गुरुओं का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, जिन्होंने पुराणों की भी रचना की है, अन्य अन्य धर्म ग्रंथों का भी किया और अन्य मतों की भी उन्होंने आविर्भाव किया, उन सब ने अपने अपने सत्य निर्धारित किए। और ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैंने अपना कोई मत या पंथ नहीं अपना आरंभ किया है। मैं केवल और केवल सत्य के, जो वेदों के असत्य अर्थ हैं वेदों के, उसका प्रकाशित कर रहा हूँ, और सारे अनर्थ रूपी तिमिर को हटा के लोगों के सामने एक ऐसा ज्ञान का आगार, ज्ञान का भंडार प्रस्तुत करता हूँ कि मनुष्य जाति उसके ऊपर में आचरण करके सदा सदा के लिए अपना भी कल्याण कर सकती है और सारी सृष्टि का कल्याण कर सकती है। और इसीलिए सारी वसुधा को एक कुटुंब मानने का जो आदेश वेदों में है, और साथ में ये कल्याण की कामना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वेदों के अंदर ही तो बंधुओं एक मानव की कल्पना की गई है, मानव जाति की कल्पना की गई है, और इस विश्व के अंदर में हर व्यक्ति को विश्व नागरिक बनने का आदेश दिया गया। हम तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देशों में बट गए हैं। हमने अपने अपने धर्म गुरु बना के, अपने अपने धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा ला के, वेदों से हटके अपने अपने मतों में, मतांतरों में प्रतिष्ठित हो गए, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, कलह और इतनी भयंकर हिंसा करने के अंदर में प्रवृत्त हो गए हैं। उसका परिणाम क्या हुआ है कि ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है, जिस सृष्टि को दिव्य सृष्टि होना चाहिए, आज वो सृष्टि जो है स्वर्ग न रह के नरक के रूप में परिणित हो गई। केवल किस कारण से? कि हम वेदों से हट गए हैं और वेदों के बनाए हुए जो वैदिक मूल्य है सनातन धर्म के रूप में, उन सब से हटते चले गए हैं। स्वामी दयानंद क्या कह रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी लिख रहे हैं कि कहीं कहीं भूल चूक से या शोधन या छापने में भूल चूक रह जाए तो अगर मेरे जीवन काल में किसी ने मुझको अगर वो प्रकट कर दिया और मुझे उसका विश्वास हो गया कि मेरी त्रुटि है, तो जैसा सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। इतनी महान और पुण्य आत्मा कहीं दुनिया के अंदर मिलती है कि हर व्यक्ति ये बोलता है, छोटा सा भी एक विषय लेके चलता है तो ये बोलता है कि मैंने अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया, और जो मैं बोलता हूँ केवल वही सत्य है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत्य है। लेकिन ऋषि दयानंद ने तो ऐसा नहीं किया। तो ऋषि दयानंद के अंदर में जो एक उनके अंदर में जिसको बोलना चाहिए स्वाभाविक गुण थे, वो गुण कुछ सामान्य गुण नहीं थे, वो एक प्रकार से आदर्श जगत गुरु के गुण थे। आदर्श जगत गुरु कौन होता है? जो संसार के हित को दृष्टि में रख के और सारे संसार के समस्त मानवों को एक इकाई मान के उन्हीं का आदि भौतिक, उन्हीं का आदि दैविक और उनका आध्यात्मिक उत्थान के निमित्त सदा तत्व और ज्ञान आदि का उपदेश किया करता है।
देखिए, मैंने इस एक छोटे से वाक्य के अंदर में कितने धर्म के सारे लक्षणों को समाहित करने का एक छोटा सा प्रयास किया। जगत गुरु किसको कहेंगे? जो सारे दुनिया की मानव और सृष्टि को एक इकाई के रूप में देखता हो, मनुष्य को विश्व मानव मानता हो और मानवों में किसी प्रकार का भेद ना करता हो। तो इसका मतलब यह है कि किसी के साथ उसका द्वेष नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो तो केवल सबके कल्याण की कामना करता है। ऐसा ही व्यक्ति वो संसार के हित को दृष्टि में रख के और सारे मानवों को एक यूनिट मान के उनकी तीनों प्रकार की उन्नति, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उसके लिए क्या करता है? केवल और केवल सत्य और तत्व ज्ञान का ही उपदेश करता है। ऋषि दयानंद इसके ऊपर में, इस कसौटी के ऊपर में पूरे खरे उतरते हैं। जगत गुरु का दूसरा क्या होता है? जगत गुरु उसको कहते हैं जो नूतन पंथ का या नूतन मत का निर्माण नहीं करता। और जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, स्वामी दयानंद तो इस बात का दम्भ भरते ही नहीं है। वो तो कहते ही है कि मेरा अपना कोई वेश में व्यक्तिगत मत नहीं है। ये मत केवल वही है जो ईश्वर ने वेदों के अंदर में स्वयं प्रकाशित किया, और उसी को मैं मानव मात्र का धर्म समझता हूँ। इसलिए वो ये कभी कहता ही नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ केवल मेरी बात को मानो। वो तो प्रेरणा करता है कि वेदों की ओर लौटो, और जो मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय के अनुसार स्वाध्याय करने का अभ्यास डालिए, और मेरी बात को सुन के उसकी पुष्टि करने के लिए वेदों के अंदर प्रवेश करें। और उसमें पुष्टि करने के लिए जब प्रवेश करें आप, तो उसमें जो कुछ प्राप्त हो उस पर मनन करें। मनन करने के बाद में अच्छा मन में एक विश्वास पैदा करें, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, डेलिब्रेशन, कन्विक्शन, एंड इट ऑल अल्टीमेटली शुड लीड टू एक्शन। तो ये चारों जो अंग हैं ज्ञान वृद्धि के, ऋषि दयानंद इन पर निरंतर बल दे रहे हैं। ये जगत गुरु ही कह सकता है। जगत गुरु होने का उनका दूसरा लक्षण हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने कभी अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कहा, और इसीलिए उन्होंने अपने लिए अपने जीवन काल में और जीवन के बाद में भी अपने अनुयायियों को कहा, मुझे कभी परम पूज्य, परम गुरु, परम रक्षक, इस तरह के शब्द मेरे लिए मत प्रयोग करना। ये शब्द तो केवल परम पिता के लिए उपयोग में आते हैं। इसलिए आज भी लोग ऋषि दयानंद के अनुयायी उनको अपना इस प्रकार का श्रद्धा के लिए सब प्रकार के संबोधन करते हैं, लेकिन उनको परम पूज्य या कोई इस प्रकार के उदाहरण जो कि केवल ईश्वर के लिए उपयुक्त होते हो, ऋषि दयानंद के लिए ना उपयोग आज भी करते हैं, ना जीवन काल में उन्होंने उपयोग करने की कभी किसी को अधिकार दिया। इसके अतिरिक्त धर्म गुरु, जगत गुरु कौन हो सकता है? जगत गुरु वही हो सकता है जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, अपने कर्म से भी और अपनी वाणी से भी, इन तीनों बातों में जिसकी कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर ना हो और केवल सत्य का ही उपासक हो, ऐसा ही व्यक्ति जगत गुरु की श्रेणी में आता है। और इसलिए ऋषि दयानंद ने तो जब सत्य आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने सबसे पहले इसी बात को कहा कि सत्य विद्याओं का जो पुस्तक है, बस उसी को पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये सभी आर्यों का परम धर्म है। अब बंधुओं, यहाँ पे मैं एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूँ। जब ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि आर्यों का परम धर्म है, तो वो आर्यों से मतलब आर्य समाजियों का नहीं है। आर्यों का मतलब है जो व्यक्ति मानव होके मानवता के मूल्यों पर आचरण करता है, वो स्वयं को आर्य कहलाने का अधिकारी है, स्वतः अधिकारी है। और इसीलिए उनके लिए केवल एक ही आदेश है कि जब आप आर्य है ही हैं, तो फिर उस सनातन अपने जो मूल्य हैं उनका निरंतर किसी भी प्रकार से अनुच्छेद करने के लिए, जिस प्रकार से हम अपने बर्तनों को रोज मांज के साफ करते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को भी निर्मल और स्वच्छ और अपडेटेड रखने के लिए क्या करना चाहिए? हर आर्य को इन वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, ये उनका परम धर्म होना चाहिए। आप केवल ये कहें कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, अब मुझे किसी स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, कुछ ही दिन के अंदर में ये ज्ञान आपका धूमिल पड़ जाएगा। जिस प्रकार से अग्नि आपने देखा है, अंगीठी के अंदर में, कोयलों के अंदर में जो प्रखरता आती है तो वो दहकते हैं, और वो दहकते हैं। अगर किसी कारण से उस अंगीठी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो थोड़ी देर में उन्हीं जो दहकते अंगारे हैं वो शीतल पड़ने लगते हैं, उनके ऊपर में राख का आवरण आ जाता है। और राख का आवरण आते ही उनके अंदर की जो ऊर्जा है, उनके अंदर की जो उग्रता है, वो धीरे धीरे
स्वयं ही कम होने लगती है। इसी का उदाहरण है स्वाध्याय। जो व्यक्ति कितना भी अपने को विद्वान मानता हो और उसके बाद में स्वाध्यायशील नहीं रहता, तो समझ लीजिए उसकी विद्वत्ता पे प्रश्न चिन्ह लग गया। और उनके लिए मैं बड़ी विनम्रता से फिर अनुरोध करता हूँ कि दुनिया के अंदर जिस किसी ने भी अपने को विद्वान माना है, वो बंधुओं अंततः कहीं ना कहीं अवनति को प्राप्त हुआ है। जीवन के हर काल में स्वयं को विद्यार्थी मान के हम ज्ञान की वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे, तो फिर हमारा इस स्वाध्याय के माध्यम से प्रखरता भी निरंतर बनी रहेगी। और आर्यों के लिए इसको ऋषि दयानंद ने सब प्रकार से परम धर्म के रूप में घोषित किया है। साथ में वो क्या कह रहे हैं, आर्य समाज के नियम के अंदर सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। अब देखिए धर्म के कितने सुंदर उन्होंने एनालिसिस कर दिया। धर्म के दो ही पक्ष हैं, उन्होंने कहा धर्म का तीसरा पक्ष नहीं होता है। धर्म का अर्थ यह है कि तो धर्म है अन्यथा अधर्म है। धर्म है तो सत्य है और सत्य नहीं है तो असत्य है, और असत्य है तो वो धर्म नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट है, सत्य है तो धर्म और सत्य नहीं है तो असत्य है और अधर्म। और ऋषि दयानंद ने तो कहा है कि अगर मेरे अनुयायी बनते हो तो आप केवल मेरा अनुशीलन नहीं करो, अनुकरण भी नहीं करो, अनुचरण भी नहीं करो, अनुसरण करो। बड़ा अंतर है बंधुओं इन तीन शब्दों में। अनुकरण का मतलब है किसी को देख के हम वैसे ही करते रहे जैसा बंदर किसी की नकल करता है। अनुचरण का मतलब हम किसी के अनुचर के रूप में केवल उसके पीछे पीछे आज्ञाकारी सेवक की तरह चलते हैं। लेकिन ना ये अनुचरण दयानंद को अभीष्ट है, ना अनुकरण अभीष्ट है। उनको अभीष्ट क्या है, अनुसरण। अनुसरण का मतलब है निरंतर गति को प्राप्त करो। जिस प्रकार से शरण, शरण का मतलब है गति, इसलिए है नदी को, नदी के प्रवाह को सरणी कहते हैं। वो सरणी इसीलिए है। और ये जो हमारे यहाँ पर जितना भी संवत है, इसको भी हम काल की सरणी बोलते हैं। तो ऋषि जानंद को क्या अभीष्ट है कि आप अनुसरण कीजिए, और अनुसरण मेरा व्यक्ति के रूप में, गुरु के रूप में मत कीजिए। मैंने जिन मान्यताओं के सत्य अर्थों का आपके सामने प्रकाश करने का प्रयास किया है, उसको वेद वाक्य के रूप में, ईश्वर के बनाए हुए धर्म के रूप में अनुसरण करके अपने जीवन के अंदर में, आचरण में लाके, व्यवहार में लाके उस धर्म को कर्म के अंदर परिणित कर दो। ऋषि दयानंद तो स्पष्ट कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार किया हुआ कर्म ही केवल धर्म की श्रेणी में आता है। आज लोगों ने क्या किया है कि धर्म तो कुछ होता है, कर्म कुछ होता है। जिसको मैंने सबसे पहले कहा कि श्री अरविंद ने कहा कि आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता, जिसको हम धर्म और कर्म के लाभ में कहते हैं, लोग इसको विपरीत अर्थक मानते हैं कि व्यवहारिक होंगे तो धार्मिक नहीं होंगे, धार्मिक होंगे तो व्यवहारिक नहीं होंगे। बंधुओं, ये बड़ी मूर्खता है। और ये मूर्खता केवल इसलिए है कि हमारी अज्ञानता है। हम अपने स्वार्थ के कारण धर्म की ऐसी परिभाषाएं करते हैं जैसी महाभारत के अंदर हर व्यक्ति ने परिभाषा अपनी अपनी करके अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। आज दुनिया भी जो है उस महाभारत कालीन समय से कोई बहुत भिन्न नहीं है, विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। कब किस स्थिति में भयंकर विनाश लीला हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। जगत गुरु अपने से पहले जितने भी गुरु होते हैं, उन सबके भी सत्य बातों का अनुग्रहण करता है, और साथ में ये भी कहता है कि मैं कोई जीवन में इस दुनिया के अंदर अंतिम गुरु नहीं हूँ। मेरे बाद में जितने भी गुरु आएंगे, वो केवल गुरु जब ही मानिएगा कि जब आप ये देखें कि उनके करथनी और करनी के अंदर में अंतर नहीं है, और जो है तो वो केवल और केवल वेदों के अनुकूल है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहीं भी अपने किसी भिन्न जो पंथ के गुरु हैं उनकी भर्त्सना या निंदा नहीं की, और अपने को अंतिम सर्वश्रेष्ठ गुरु भी नहीं कहा। उन्होंने जब पुराण की, जैनियों के ग्रंथों की, बौद्धों के ग्रंथों की, सिखों के ग्रंथों की, बाइबल की, कुरान की, और इन सब का अध्ययन किया, किसी पूर्वाग्रह से और बुरी दृष्टि से अध्ययन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके अंदर में सब जो है केवल केवल अवगुण ही अवगुण भरे होंगे। उन्होंने तो सत्य और असत्य का विश्लेषण करने के लिए, जिस प्रकार से पैथोलॉजिकल टेस्ट में है, जब ब्लड के टेस्ट कराते हैं, अन्य अन्य शरीर के और जितने भी हमारे केमिकल्स हो सकते हैं, उन सबका जब केमिकल टेस्ट कराते हैं, तो पैथोलॉजी में टेस्ट करके हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हर डॉक्टर ये जानने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति की बीमारी को अगर मुझे किसी भी तरीके से डायग्नोस करना है, तो डायग्नोस करने से पहले
मुझको इसकी वास्तविक जो रूट कॉज है उसको जानने की इच्छा है। वो रूट कॉज क्या है? वही सत्य है, वो बीमारी का सत्य कारण है। और जब डायग्नोस करता है तो वो ये मान के नहीं चलता कि ये सारा का सारा जो है दूषित है। वो ये मान के चलता है कि इसके अंदर बहुत कुछ दूषित होगा, लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर ग्राह्य भी होगा। और ये तो मेरे शरीर का स्वभाव है। आप और मैं प्राणी के रूप में जितना भोजन और आहार ग्रहण करते हैं, वो सारा का सारा क्या हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है? उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो ग्राह्य है। वो शरीर के अंदर में इतनी क्षमता है, वो ग्राह्य का किसी भी प्रकार से ग्रहण करता है और बाकी को हमारे उत्सर्जन संस्थान के माध्यम से शरीर से विसर्जित कर देता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब ईश्वर के बनाए हुए इस शरीर के अंदर में इतनी बुद्धि और विवेक है, आत्मा का विवेक जो है वो उसकी इंद्रियों को संचालित करके उसको सत्य और असत्य का, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज खाने लायक नहीं है, पानी ड्रिंकेबल है कि पानी ड्रिंकेबल नहीं है, इस चीज के अंदर में विष है कि इस चीज में अमृत है, इतना सामान्य ज्ञान जब हम अपने आहार के अंदर कर सकते हैं, तो बंधुओं अपनी धार्मिक मान्यताओं में हम इतनी असावधानी क्यों बरतते हैं? उसके अंदर में हम सत्य और असत्य को जानने की पहले चेष्टा क्यों नहीं करते? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये अपने आप में एक सुसाइडल टेंडेंसी से कम नहीं है? जो हमारे जीवन का आधार हो सकता है उसके बारे में हम सजगता निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के बारे में सजगता इतनी निर्माण करते हैं कि उसको हम अपने जीवन के अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में अपनाने के अंदर में अपने स्मार्टनेस का, अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का प्रयोग सबके सामने बड़े गर्व से करते हैं। लेकिन जब धर्म का विषय आता है तो हर व्यक्ति की जबान को मालूम नहीं क्या ऐसे लकवा मार जाता है। वो एक ही बात बोलता है कि धर्म के ऊपर में किसी तरह का तर्क नहीं होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इस बात को खंडन किया। ऋषि दयानंद ने कहा कि तर्क स्वयं एक ऋषि होता है। ये तर्क ही है जिसके माध्यम से आप सत्य और असत्य का अन्वेषण कर सकते हैं, और सत्य का अन्वेषण करने के बाद ही उसको ग्राह्य मानना, ये तो मानव मात्र के लिए, स्वयं के लिए कल्याणकारी है। तो जिस प्रकार से भोजन मेरे लिए आदि भौतिक एक प्रकार की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक आवश्यकता है धर्म, क्या उसके अंदर में सत्य और असत्य का निर्णय करना मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है? आज इस कल्याणकारी के विषय में इतनी असावधानी बरतने से हमारी स्थिति क्या हो गई? हम लोग सनातन धर्म का नाम तो लेते हैं, भूल जाते हैं कि सनातन केवल और केवल वेद है। इसके अतिरिक्त दुनिया का कोई भी धर्म शास्त्र सनातन की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन हर व्यक्ति ने अपने अपने बनाए हुए जितने भी ग्रंथ हैं, जिनके अंदर में हम देश के ग्रंथों में बात करें तो पुराणों की हैं। पुराण कोई एक नहीं है, 18 पुराण तो हम जानते हैं। और लोग ये कहते हैं कि 108 पुराणों की रचना हुई है। बंधुओं, मुझे बताया कोई व्यक्ति, अगर धर्म सत्य है और एक ही है, तो फिर एक पुराण के बाद दूसरे पुराण बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल इसलिए पड़ी कि किसी भी व्यक्ति को अपने मत का प्रचार करना था। उसके मन में यह भ्रम था कि मेरा जो मत है बस सत्य यही है। उसने किसी दूसरे के मत से भिन्न अपना मत प्रकाशित करके उसके प्रचार में सारी सामर्थ्य लगा के एक अन्य पुराण की रचना कर दी। फिर एक तीसरे व्यक्ति ने एक तीसरे की कर दी, एक चौथे ने कर दी। तो इसका मतलब क्या है? इट दे ऑल आर सॉर्ट्स ऑफ डेविएशन। डेविएशन किससे? डेविएशन फ्रॉम द ट्रूथ। तो जब डेविएट करेंगे तो फिर देर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। और उसी कारण से है कि धर्म ग्रंथ इतने हैं, धर्म की चर्चा इतनी है, और उसके बावजूद सारी दुनिया के अंदर में इतनी हिंसा, दुनिया के अंदर में इतना वैमनस्य, दुनिया के अंदर में इतना स्वार्थपरता, दुनिया के अंदर में भाई भाई की जान का दुश्मन। और फिर भी हम सब लोग ये बोलते हैं किसके नाम पे हो रहा है? धर्म के नाम पे हो रहा है। बंधुओं, क्या धर्म के नाम पे इस प्रकार के अत्याचार, शत्रुता, वैमनस्य, कलह, कटुता हो सकती है? अगर ये सब हो रही है तो मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो धर्म नहीं है, वो सारा का सारा अधर्म है। जिसके ऊपर में कोई भी व्यक्ति दो मत रख सकते हो, वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता है, जो अनडिबेटेबल है। इसलिए ये कहते हैं कि सबसे दुनिया की अगर कोई चीज सिंपल है तो वो धर्म है, और जो चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दी गई है, इसका मतलब यह है वो किसी पूर्वाग्रह से, किसी प्रेजुडिस के कारण बना दी गई है, जिसको सत्य का आधार बना के उसके ऊपर असत्य का भवन खड़ा कर दिया गया। और वो भवन खड़ा कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारा ये कंक्लूजन होना चाहिए
कि वो धर्म से डेविएट करके कुछ और बन गया है, लेकिन धर्म तो नहीं रह गया। उन्होंने साथ में क्या लिखा कि मैंने ये जितने भी इन ग्रंथों को मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर केवल गुणों का ग्रहण कर रहा हूँ, और जो इसके अंदर मुझे अवगुण नजर आता है, उन दोषों का त्याग करने के लिए मनुष्य जाति की जागृति की उन्नति के लिए यत्न करता हूँ। जगत गुरु के रूप में वो जीवन में कभी प्रतिक्रिया के शिकार नहीं बने। उन्होंने कभी भी किसी चीज पर रिएक्ट नहीं किया। प्रतिक्रिया बोलते हैं, एक्शन पे रिएक्शन। ऋषि दयानंद रिएक्शनरी नहीं थे, प्रोएक्टिव थे। लोग कहते हैं खंडन करते थे। खंडन का अर्थ क्या होता है? आपको अगर एक कपड़ा सिलवाना है बंधुओं, तो बड़ी सावधानी से आप एक कपड़ा खरीद के थान को दर्जी के पास लेके जाते हैं, और दर्जी को कहते हैं भैया ये मेरे नाप के। टेलर मेड का मतलब यह है कि मेरे मेजरमेंट के हिसाब से शरीर के लिए मेरा एक वस्त्र बना दीजिए। तो एक रेडीमेड होता है वस्त्र, एक टेलर मेड होता है। रेडीमेड के लिए हमको स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है, और टेलर मेड वो होता है जो स्वयं को एडजस्ट करके मेरे लिए बनता है। तो हम क्या करते हैं? टेलर मेड बनाते हैं। तो टेलर क्या करता है? हमारा नाप लेने के बाद में उस नाप के हिसाब से सबसे पहले उस कपड़े का कैंची से लेके खंडन करता है, और खंडन करके क्या ऐसे ही छोड़ देता है? फिर तो वो बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। वो तुरंत सिलाई करके उसका मंडन करता है, और जैसे ही उसने खंडन करके मंडन किया, ये दोनों के दोनों तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स है। इन दोनों के बाद में क्या किया? उसने एक वस्त्र बना दिया। वो वस्त्र आपके शरीर के लिए सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। आप मुझे बता दीजिए, क्या इन दोनों चीज, इस तरह के प्रोसेस में कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम डिस्पेंसेबल बोल सकते हैं? बोथ आर इनडिस्पेंसेबल। तो बार बार लोग ऋषि दयानंद के ऊपर में ये जो आक्षेप लगाते हैं कि ऋषि दयानंद तो केवल खंडन करते हैं, बंधुओं ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने जब 18 समुल्लास के अंदर में 10 समुल्लास, 14 उनके जो समुल्लास हैं, उन 14 में से 10 समुल्लास के अंदर केवल और केवल मंडन किया है। केवल उसके अंदर में विधान बताए हैं, इस प्रकार का खंडन नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने 14 के अंदर में 10 के अंदर केवल और केवल मंडन किया हो, और बाद में समाज के कल्याण के हित के लिए ये बताने का प्रयास किया हो कि इन इन चीजों में ये अशुद्धियां मैं देखता हूं, तो किसी भी समाज सुधार का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो दोष को जानने के बाद सबसे पहले मानव जाति को उसके बारे में चेतावनी दे कि देखो ये दोष जो है ये तुम्हारे लिए अकल्याणकारी हो सकता है। तो जिस व्यक्ति ने 14 में से 10 के अंदर केवल मंडन किया हो, और 4 के अंदर में खंडन करके भी उनके कल्याण की कामना की हो, ऐसे व्यक्ति को हम केवल और केवल सत्य का आग्रही, सत्य का मूर्तिमान स्वरूप नहीं कहें तो हम क्या कहेंगे? एक मैं और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। समय मुझको लगता है कि अब ज्यादा अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि अब 9:25 हो गए हैं। रमेश भाई साहब, आप बताएं कि मुझे कितने मिनट और बात करनी चाहिए? Yeah, another 10 minutes and 10, 15 minutes, and then ओके, we have some time for Q&A. Yeah, thank you. थैंक यू। आई विल limit myself to this Yeah. prescribed limit of another 10 to 15 minutes only. Yeah. देखिए, एक दो उदाहरण आते हैं जिसको हम एक तुलनात्मक उदाहरण के रूप में आपको बताएं। मैंने ये कहा प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रिया का मतलब है रिएक्शनरी। आज दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा जो विडंबना है वो इसलिए है कि हमारे यहाँ एक्शन कम होता है, रिएक्शन ज्यादा होता है। और आज हिंदू समाज का भी यही बहुत बड़ी दुर्दशा है, और इस दुर्दशा से हमारा आर्य समाज भी अछूता नहीं है। आर्य समाज से जुड़े हुए यहाँ जितने भी बंधु होंगे, मैं उनके सामने बड़ी निर्भीकता से कहने का ये साहस कर रहा हूँ। आर्य समाज के अंदर भी आज हमारे विद्वानों के अंदर में एक प्रमाद है, एक आलस्य है। वो अपनी बात को स्पष्ट पहले नहीं रखते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति कुछ अगर गलत बोल देता है तो उसका खंडन करने में, उस बात को काटने में अपनी सारी एनर्जी तो लगाते हैं, लेकिन उसके पहले अपनी एनर्जी उन सारे सत्य के मान्यताओं को प्रचारित और प्रसारित करने में लगाते हो, ऐसे विद्वान बहुत कम नजर आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्वान तो है लेकिन केवल रिएक्शनरी है। ऋषि दयानंद तो रिएक्शनरी नहीं थे, वो तो प्रोएक्टिव थे। और प्रोएक्टिव का मतलब ये किसी की प्रतीक्षा करने से पहले अपनी बात को पूरा कहने का प्रयास करते थे, साहस करते थे, परिश्रम करते थे। और परिश्रम करते थे तो जब वो ये देखते थे कि कुछ चीज ऐसी हो रही है जो वेदों के नाम पे ही
वेदों के ऊपर कलंक के रूप में लोगों ने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है कि यज्ञों में पशु बलि देते थे। ऋषि दयानंद के समय में क्या, पहले महात्मा बुद्ध के समय में भी ये स्थिति थी। उस समय के जितने भी लोग रहे, उन्होंने, पंडितों ने उनको ये बताया, महात्मा बुद्ध को, कि महाराज ये यज्ञों में पशु बलि देने का विधान तो वेदों में लिखा है। महात्मा बुद्ध ने कहा ये तो बड़ी भयंकर बात है, कहीं भी किसी पशु की, निरपराध पशु की हत्या करना, ये तो हिंसा है, और मैं तो ऐसी हिंसा को किसी भी प्रकार से स्वीकृति और मान्यता नहीं देता हूँ। और मेरा तो ये निश्चित मत है, जिसको हम बुद्ध धर्म कहते हैं। अब मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, ये धर्म नहीं है, बुद्ध पंथ है। लेकिन उन महात्मा बुद्ध ने एक असावधानी की। उन्होंने उन वेदों के नाम पे होने वाली उस हिंसा का तो घृणा करके उसकी निंदा की, लेकिन साथ में क्या कह दिया उन्होंने, कि यदि वेदों में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे वेदों को ही नहीं मानता हूं। ये तो बंधुओं कोई समाधान नहीं है, और किसी भी महापुरुष से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। अपेक्षा तो यह थी कि उन महापुरुष को उस समय उन वेदों का अध्ययन स्वयं करना चाहिए था, जान के ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए था कि क्या वास्तव में जिसमें ये कह रहे हैं कि यज्ञों में पशु बलि का विधान है, वेदों में कहीं लिखी भी है कि नहीं लिखती है। लेकिन उन्होंने इतना परिश्रम करना आवश्यक नहीं समझा। संभवतः ये उनका प्रमाद रहा होगा, असावधानी रही होगी, ये जो भी रहा होगा, मैं किसी महापुरुष पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, निश्चित बात है कि उन्होंने जीवन काल में केवल एक रिएक्शनरी एक्शन तो किया। उन्होंने कहा कि अगर वेदों में लिखा है तो मैं ऐसे वेद को मान्य नहीं करता। ऋषि दयानंद के सामने भी इस तरह की बातें आई। उनके सामने भी जितने पोगापंथी अंधविश्वासी लोग थे और इस प्रकार से पशु बलि की बात करते थे, उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा है। ऋषि दयानंद ने कहा कहाँ लिखा है, जरा मुझे दिखाओ। उनके जीवन काल में एक भी व्यक्ति पशु बलि के किसी सिद्धांत का दिग्दर्शन ऋषि दयानंद को वेदों में तो नहीं दिखा पाया। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जितना ये वेदों के अंदर में मंत्रों के सत्य अर्थ प्रकाशित होने चाहिए, लोगों ने इसका अनर्थ कर दिया। और कितना अनर्थ किया है, आज तो इस सीमित समय में मैं आपके सामने उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बंधुओं, ऐसे लगभग सैकड़ों उदाहरण हैं जिसके अंदर जो वैदिक अहिंसा की बात ऋषि दयानंद करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अहिंसा में और हिंसा में मूल रूप से अंतर क्या होता है। उन्होंने बताया कि हिंसा का अर्थ केवल किसी का शारीरिक रूप से खाली आघात करना ही नहीं होता है, प्राण लेना तो एक अंतिम परिणति है। यदि मानसिक रूप से भी आप किसी व्यक्ति का अनिष्ट सोचते हैं तो वो भी एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति मांस खाता है, उसके उदर की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति उसके लिए किसी पशु को मार के लाता है। उस पशु को मार के लाने वाला व्यक्ति किसी कसाई को ला के देता है, वो कसाई जो है उसको खाने योग्य बना के उसका ड्रेसिंग करता है, उसका ड्रेसिंग करके कोई व्यक्ति उसको बेचता है। इन सब लोगों से पूछा जाए कि भाई तुमने उस पशु को क्यों मारा, उसको कह रहा है कि उस पशु से मेरा कोई बैर नहीं था, लेकिन यह मार्केटेबल प्रोडक्ट है, दुनिया में इसकी डिमांड है, इसलिए मैंने मारा, इससे मेरी जीविका चलती है। ठीक है, तुमने नहीं मारा, अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ से, चलो तुम्हारा दोष नहीं है। किसका दोष है जी? मैंने तो कसाई को दे दिया था। कसाई क्या कह रहा है जी? मेरे को मालूम नहीं है, मैंने नहीं मारा, जिसने मुझे मारा हुआ ला के दिया था, मैंने तो केवल उसकी ड्रेसिंग की है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मैंने ड्रेसिंग करने के बाद में उसको काट काट के उसको पैक करके खाने के लायक पैकेट बनाए हैं। और चौथा बना के कह रहा है कि मैंने तो केवल उसको पका के खिलाया है। किसके लिए खिलाया है? उस व्यक्ति के लिए जो उसको खा रहा है। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ लोग धर्म की परिभाषा ये करते हैं कि जो उसको खा रहा है केवल वही हिंसा का दोषी है। ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हिंसा का दोषी इनमें से प्रत्येक, उन चारों में से, इस पूरी चेन में हर व्यक्ति है जिसने अपने स्वार्थ के कारण, अपने उदर पूर्ति के कारण निरपराध पशु की हत्या की है, वो सबसे पहला दोषी है। जिसने उसको बाद में ड्रेसिंग की वो दूसरा दोषी है। जिसने और आगे कुछ किया वो, और सबसे बड़ा दोषी तो वही व्यक्ति है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो कुछ हिंसक कारिता होती है, कुछ कृति, कुछ कृतम होती है। तो मैं आज इसका व्याख्यान नहीं करूंगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने स्पष्ट दृष्टिकोण बताया कि हिंसा और अहिंसा के अंदर में मूल रूप से अंतर क्या होता है। लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि जब एक सैनिक
अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर सन्नद्ध होता है और वहां पर शत्रु को देखते ही गोली मार के उसका प्राण हर लेता है, तो वो अपने देश के सुरक्षा के कल्याण के लिए कर रहा है, इसलिए वो हिंसा का दोषी नहीं है। पुलिस भी किसी व्यक्ति को दंगाई को देखते ही गोली मारती है जैसे ही उसको आदेश मिलता है, तो उस व्यक्ति को एक को मार के हजारों व्यक्तियों को अभय दान देता है, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। जब तक हमारे अंदर में इतना जुडिशियस थिंकिंग निर्माण ना हो, तो हम क्या जानेंगे कि हिंसा किसको कहते हैं और अहिंसा किसको कहते हैं। ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, बौद्ध धर्म ने भी इसके अंदर में विकृतियां उत्पन्न कर दी और उसका ये परिणाम हो गया। आज हमारे बौद्ध पंथ के अनुयायी पशु को तो नहीं मारते हैं, लेकिन मरे हुए पशु का मांस आज भी खाते हैं और स्वयं को अहिंसक की श्रेणी में लाते हैं। ये अज्ञानता, स्वार्थ और एक प्रकार का पाखंड, नहीं तो इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। बंधुओं, सत्य अर्थों का अगर किसी व्यक्ति ने आग्रह किया है, इस दुनिया के अंदर में सत्याग्रही की श्रेणी में अगर किसी व्यक्ति को लाया जा सकता है, तो केवल और केवल ऋषि दयानंद को, जिन्होंने यज्ञों के अंदर इस प्रकार की ये सब देख के लोगों के द्वारा बताई जाने की, उन्होंने वैदिक कर्म कांड का ही उद्धार कर दिया। और साथ में इसीलिए कहा उन्होंने कि वेदों का पठन पठान, ये पठन पाठन आर्यों के लिए निरंतर अनिवार्य होना चाहिए। और जगत गुरु चूंकि एकांगी नहीं होता, इसलिए केवल खंडन ही खंडन करता जाए, मंडन ना करे। ऋषि दयानंद ने ऐसा भी नहीं किया। तो ऋषि दयानंद ने, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 10 में तो केवल और केवल मंडन कर रहे हैं। मंडन का मतलब कोडिफाई कर रहे हैं, साथ में एक विधान बता रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, धर्म की क्या परिभाषा है, ईश्वर के कितने नाम है, राजनीति का धर्म क्या होना चाहिए, शिक्षक का क्या धर्म होना चाहिए। जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, उन सबके अलग अलग अपने अपने हैं, जो उनके कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से उनका क्या धर्म होना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया। और सबसे अंत में एक धर्म की उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर मैं बल दिया, उन्होंने कहा वेदों के अंदर में ईश्वर की कोई मूर्ति बनी ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं होता है। जब ईश्वर निराकार है, जब उसका कोई आकार ही नहीं है, तो आप ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसका आकार बना के एक प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं। जितने जीवन काल के अंदर ऋषि के शास्त्रार्थ हुए, इतने बड़े बड़े पौराणिक विद्वानों के साथ हुए, ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जीवन काल में कभी भी उनको शास्त्रार्थ में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। जितने भी व्यक्ति शास्त्रार्थ करने के लिए उनके सामने आए, या तो वो शास्त्रार्थ का साहस ही नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने वास्तव में ईमानदारी से शास्त्रार्थ किया, तो उसमें से कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो शास्त्रार्थ में उनसे निरुत्तर होके, पराजित होके, स्वयं उन्होंने उन सारे मूर्ति पूजा के विचार को त्याग करके और वैदिक धर्म को अपना लिया। और उसी का परिणाम तो है 1875 में ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो क्या उससे पहले कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर आर्य समाजी के नाम से जाना जाता था? शून्य से सृष्टि निर्माण करने वाला व्यक्ति अगर इस दुनिया के अंदर है, जिसने एक भी व्यक्ति आर्य समाजी नहीं था, जीरो से लाखों करोड़ों की संख्या में इस दुनिया के अंदर वैदिक धर्म के अनुयायी, जो आर्य समाज के साथ में अपनी संबद्धता मान के आर्य समाजी के रूप में कहलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की श्रृंखला निर्माण कर दी। ऐसा व्यक्ति सत्याग्रही के अतिरिक्त अन्य क्या हो सकता है? एक व्यक्ति के आत्मबल को देखिए। जो व्यक्ति उनके जीवन के संपर्क में आया, उसके लिए हमको बहुत उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण पर्याप्त समझता हूँ। हम स्वामी श्रद्धानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। ये स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति है जो अपने जीवन के हैं युवावस्था में सब प्रकार के व्यसनों के साथ में जुड़े हुए थे। वेश्यावृत्ति करते थे, मद्यपान करते थे, मांस खाते थे, नास्तिक थे, मालूम नहीं क्या क्या दुर्गुण थे। केवल पिता के परामर्श पे एक बार इस सन्यासी को मिलने के लिए चले आए। इनके व्याख्यान को इस दृष्टिकोण से सुना कि इसकी मखौल उड़ाऊंगा इस सन्यासी की। एक भी इसके मुंह से अशुद्धि निकलेगी तो मैं इससे पूछूंगा कि इसका अर्थ क्या है। निरंतर कितने ही दिन तक उनके व्याख्यान सुनते रहे, सुनते सुनते ऐसा चुंबकीय आकर्षण लगा कि उस मुंशी राम को यह लगने लगा कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है। अंततः फिर भी साहस करके उन्होंने कहा, महाराज आपकी बातें तो मुझे ऐसी लगती है कि मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास भी नहीं है,
लेकिन आप जो ये बार बार ईश्वर की बात करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ईश्वर के दर्शन मुझे करा देंगे? ऋषि दयानंद जैसा निर्भीक सन्यासी, उन्होंने कहा मैंने कब कहा है कि मैं तुमको ईश्वर के दर्शन करा दूंगा? अरे ईश्वर के दर्शन कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर तो जिस पर कृपा करते हैं स्वयं उसको अपने दर्शन देते हैं। मैंने तुमको कब ये गारंटी दी है? और आज तो हमारा समाज में भरे पड़े हैं जो लोग स्वयं को भगवान और ईश्वर बोलते हैं और साथ में लोगों को ईश्वर दर्शन की गारंटी देते हैं। ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति जिसने गारंटी उसी समय स्पष्ट बोल दिया। गुरु जैसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, महर्षि के जीवन के अंतिम क्षणों को देख के कहने लगा कि वास्तव में कोई एक ऐसी शक्ति अदृश्य है जिसको ऋषि दयानंद अपने जीवन काल में कहते रहे और मैं उसके अस्तित्व को नकारता रहा। आज तो मैं समझ रहा हूँ कि ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति जिस मान्यताओं के लिए जिया है और जिस मान्यताओं के लिए उसने अपने शरीर पर उत्सर्ग भी किया है, वास्तव में मैं आज से उस ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करता हूँ। ऐसे उदाहरण तो मैंने आपके सामने ये दो दिए हैं, मैं आपके सामने 200 उदाहरण दे सकता हूँ और 200 उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जिसके जीवन में वैदिक मान्यताओं का किंचित भी प्रवेश ऋषि दयानंद की कृपा से हुआ है, तो समझ लीजिए ईश्वर के ने स्वयं उस व्यक्ति को प्रेरणा देके उसके हृदय में, उसके मानस में और उसकी आत्मा में प्रवेश किया है। तब वो ऋषि की उन मान्यताओं के ऊपर में आचरण करने के लिए अपने अंदर में एक संकल्प शक्ति निर्माण कर रहा है और इसी को हम शिव संकल्प के मंत्रों के माध्यम से अपने यहाँ पर वैदिक विधान के अंदर में पाते हैं। तो ऋषि दयानंद ने और बहुत सारी मान्यताएं हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा तो विषय लंबा हो जाएगा। पर उन्होंने एक पंच महायज्ञ का बहुत विधान किया। उन्होंने जिस भी चीज का निषेध किया मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं और अधिकांश लोग ये जानते हैं कि ऋषि दयानंद को तो दुनिया की हर चीज से परेशानी थी और उसी का परिणाम आज ये भी हो गया है कि आर्य समाज के हर व्यक्ति को, हमारे पौराणिक जगत का हर व्यक्ति केवल इस दृष्टि से देखता है कि इस व्यक्ति को हर चीज से शिकायत। अरे बंधुओं, शिकायत केवल उसको उस चीज से है जो सत्य नहीं है और वो केवल सत्य जानता है। और इसलिए एक हमारे यहाँ कॉइन किया गया, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये बंधुओं, इग्नोरेंस इज ब्लिस जो है, ये उनके लिए वाक्य है जो स्वयं मूर्ख रहकर और कुएं के मेंढक के रूप में उसी को दुनिया मानते हैं। क्या ज्ञान जो है ये किसी भी प्रकार से किसी के लिए अभिशाप हो सकता है? और अज्ञानता वो हमारे लिए वरदान हो सकती है? ये केवल मूर्खों के बनाए हुए है और मूर्खों के बनाए हुए मुहावरे है। मैं बड़ी विनम्रता से अपने सारे श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के ये जो हमारे बड़े पॉपुलर स्लोगन्स हैं, इन पॉपुलिज्म के पीछे न पड़ के हम ज्ञान की वृद्धि करें और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए केवल और केवल आचार्य प्रवर हमको कोई मिलता है तो ऐसा आदर्श गुरु जिसको हम जगत गुरु कहें या वर्ल्ड टीचर कहें, तो केवल और केवल ऋषि दयानंद के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं दिखता। अंत में मैं एक डॉक्टर JKF जॉर्डन हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी थे, उसके प्रोफेसर थे। उन्होंने ऋषि दयानंद के ऊपर में बहुत रिसर्च की और बहुत अध्ययन किया। उनके 2-3 सेंटेंस है, मैं उनको कोट करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये एक प्रकार का जिस्ट है कि एक विदेशी व्यक्ति ने जो ऋषि दयानंद के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं रखता होगा, वेदों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता होगा, लेकिन केवल और केवल ऋषि के जीवन को पढ़ के और ऋषि की मान्यताओं का अनुकरण और अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद में उसके मन के उद्गार क्या निकलते हैं, वो ये लिखता है, here is a man who stood up before the critical audience of the metropolis। आज हम कहते हैं ना, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितने भी उसमें एलिट रहते हैं, जितने हमारे यहाँ पर श्रोताओं में भी हैं, सब लोग बड़ा क्रिटिकल एनालिटिक होते हैं और जो उनके सामने है, he could stand before them and was very different from रूरल रिफॉर्मर। साधारण रिफॉर्मर नहीं था। जितने भी क्रिटिकल इस तरह के क्रिटिक थे, सबके सवालों का जवाब देने की साहस रखता था, तो वो ऋषि दयानंद था। साथ में क्या कह रहे हैं, he brought the Vedas out of the Brahmanic sanctuary into the open and made them accessible to all the humanity। वेदों को लोगों ने क्या बना रखा था? उस समय का जो ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण समाज था, उसने वेदों को ऐसा अपनी मुट्ठी के अंदर रखा हुआ था कि वेद को ना किसी को पढ़ने का अधिकार है, ना पढ़ाने का प्रेरणा है।
और स्त्रियों को तो बिल्कुल ही वंचित किया हुआ था। उनको तो गायत्री मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेदों को बनाई हुई थी, ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति है जिन्होंने उन वेदों को दुनिया के लिए सार्वजनिक कर दिया, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी। साथ में क्या कह रहे हैं, इट वॉज नॉट हिज ड्रीम टू बी ए फाउंडर और गुरु ऑफ ए रिफॉर्म सेक्ट, बट ही वॉज डिटरमिन्ड टू वर्क फॉर द रीजनरेशन ऑफ द होल ऑफ आर्यवर्त। एक विदेशी प्रोफेसर उनके लिए टेस्टिमोनियल दे रहा है। आर्यवर्त को खड़ा करना, रीजनरेट करना, पुनरुद्धार करना, ये उसके जीवन का लक्ष्य था, कोई अपना सेक्ट बनाना नहीं था। इसलिए साधारण रिफॉर्मर नहीं था। ही वॉज ए फार्मर नॉट रिफॉर्मर। ही वॉज बेसिकली एन एक्सट्रोवर्ट, ए डूअर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द टेंसेस। टेंसेस मीन द पास्ट टेंस, द प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर। जिसका अतीत नहीं है बंधुओं, उसका वर्तमान भी नहीं होता है, और जिसका अतीत नहीं है, वर्तमान भी नहीं है, तो उसका भविष्य भी कुछ नहीं है। आज हिंदू समाज की हमारी भयंकर यही स्थिति हो रही है। हम लोग इसके बचने का प्रयास करें। और अंत में वो क्या कह रहा है, ये मुझको स्पष्ट ज्ञान हो गया है। अब मैं उसको उसके हिंदी के शब्द की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि वेद जो है ये स्वतः प्रमाण है। यह प्राचीनतम आर्य ग्रंथों, ब्रह्म सूत्रों व गीता में भी उन्हें सर्वोच्च शास्त्र होने का गौरव दिया। गीता में भी वेदों को सर्वोच्च शास्त्र का गौरव दिया, ब्रह्म सूत्रों में भी दिया, और जितने अन्य ग्रंथों में उन्होंने भी दिया। तो ऋषि दयानंद ने दिया तो कोई नई बात नहीं की, लेकिन बात ने कह के उसके ऊपर बल नहीं दिया। और ऋषि दयानंद ने उस पर बल देते देते अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। ऐसा केवल एक व्यक्ति सत्य का आग्रही महर्षि दयानंद सरस्वती है, जिनको हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए पर्सन हु वॉज ट्रुथ पर्सोनिफाइड। ओम। Thank you, Ravidev Gupta ji. Excellent presentation. Let us see if the audience has any questions, any comments. Anybody has any comments? But let Yes, me begin with one my- thought. Yeah, anybody has comments? Yes, please. Yeah. yes. Myself, Dr. Vivek Arya from Delhi. Yeah, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं, ये डॉक्टर विवेक आर्य हैं। हाँ जी। ही इज अ वेरी यंग पर्सन बट अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एज वेल। Mhm. को बोलते हैं कि कैरिंग ओल्ड हेड ऑन हिज यंग शोल्डर। Nice. That's very good. बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इन्होंने, बहुत कुछ लिखते हैं ये। और ये वो हैं बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, शायद जिसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। हाँ जी। आई रॉन्ग, पीडियाट्रिक्स। Yeah. तो ये उसके डॉक्टर हैं, मेडिको हैं, और आर्य समाज के साथ समर्पित हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। स्वागत है। अच्छा, प्लीज। सबसे पहले तो मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सुंदर व्याख्यान को सुनने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। दूसरा, मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा रविदेव जी का। वो उनकी मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उन्हें कभी सुनता नहीं। आज मैंने उनका पूरा लेक्चर सुना है पहली बार, और उनके लेक्चर में क्या नहीं मिला मुझे, अनुसरण अनुचरण और इसमें क्या अंतर है, ये भी पहली बार अंतर पता चला मुझे। खंडन मंडन की बजाय स्वामी जी तो प्रोएक्टिव थे। मतलब एक्शन और रिएक्शन नहीं था, सुपर एक्शन था। कितनी बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और एक टेलर का एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया कि कैसे खंडन मंडन के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। ये भी बहुत बढ़िया बात बताई। और सबसे बड़ा अंत में आते आते जो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका से उन्होंने स्वामी दयानंद के मत को बोला कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल समाज सुधार है, और वो वेदों के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो ये क्रक्स ऑफ द होल टॉक यही है कि आज के समाज में ऋषि दयानंद के सिद्धांतों की जितनी आवश्यकता है, हिंदू समाज का पूरा विश्व जिस पतन की ओर जा रहा है, ऐसे में विजनरी दयानंद की विजन ही हमें बचा सकती है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से हमें रविदेव जी के मुखारबिंद से धारा प्रवाह और इतने ज्ञान के भरा हुआ, ठोक ठोक कर ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे भाषण हमें सुनने को मिले। निरंतर वो बोले, बिना अटके बोले। और कितनी तैयारी की होगी मैं समझ सकता हूँ। 1.5 घंटा बोलने के लिए कम से कम 1 महीने की तैयारी चाहिए। हाँ जी। उनको सभी को
सभी श्रोताओं को, आयोजकों को और मुख्य वक्ता को धन्यवाद। नमस्ते। Thank you, Vivek ji, Dr. Vivek ji. Thank you so much. Yeah. Anybody else has to say नमस्ते anything? नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, मैं अनिल कक्कड़ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, नमस्ते बेटा। आपका गला खराब है, बता दूं, मैं तैयारी तो बहुत की है, इनका गला खराब है। अभी भी इन्होंने 1.5 घंटा बोला है, इनका गला खराब है आचार्य जी का, और मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मैं लेट जुड़ा, इसके लिए माफी मांगता हूँ आचार्य जी, गला खराब है। अच्छा, गला बहुत खराब है, बोलने की हिम्मत हाँ। नहीं हो रही थी, लेकिन वही रमेश लास्ट अभी हाँ, अभी लग रहा था बिल्कुल, बहुत आचार्य जी बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ा मेरे को हो रहा था, आपका गला खराब है। रमेश जी, आपसे कोई एक्सक्यूज भी नहीं मांगा, क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं समय पे अपना विषय सबके सामने रख सकूं। हाँ, गला वास्तव में मुझे अनुमति नहीं दे रहा था, बस बहुत जोर लगा के मैंने बोला है। नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Anybody else has any comment, or I have one point. I will just mention Ravi Dev ji. You हाँ, know, बोलिए। Maharishi Dayanand Saraswati ji, for him Vedas was the ultimate source of knowledge, right? That's Adam, very pure. And second principle was worship of one supreme being. You can't define God. God is Nirakar. You have to work with God. So Vedas also talked about Advaita. Why this concept of, I mean, in Vedas and Upanishads started with Advaita. They never talked about murtis and all that. But murtis came in later, like Swankhya Yoga, and then, the Shiva Panth and all that. So it is something which people have to recognize, that Advaita and Dayananda's philosophy, Arya Samaj philosophy are similar. Am I correct? Why I did not hear the word Advaita throughout this presentation, or I read also Satyartha and Satya Prakash, that Grantha which I bought it on Amazon and read it, but I am looking for Advaita as a foundation of Sanatana Dharma, number one. And everything else is way of life. And I get your point. And everything, and that way of life has to be consistent with the principle of Advaita. That is spiritual side, way of and way of life, and both have to be consistent with each other. Spiritual life, the Advaita principle, and way of life have to reconcile. I'll stop here. I don't know whether it's a question or a comment, but I'd like to hear from you. Yeah, thank you. What I could infer from the spirit of your question is, because you have mentioned the term Advait, yeah, which was mentioned by Adi Shankaracharya. Yeah. And in fact, I wanted to touch that subject also, but the time didn't permit me. And I was all the time thinking that I would request you later to have a lecture on this point also. Okay. But to only give a touch and go treatment to this question, Advait is one school of thought. There are three schools of thought: Dvait, Advait, and Trait. So Adi Shankaracharya, he propounded Advait. Advait means non-duality. Yeah. Non-duality. Non-dualism. Yeah. Yes. Non-duality का मतलब ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आदि शंकराचार्य एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके बारे में ऋषि दयानंद ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि विद्वान जो हैं प्रशंसा तो एक दूसरे की विद्वत्ता की करते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि वो एक दूसरे के मत के साथ 100% सहमत भी हों। तो ऋषि दयानंद ने बड़ा स्पष्ट इसको बाद में कहा कि वेदों में वेद का इंटरप्रिटेशन जो है वो एक अलग तरह का वो है। जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में बड़े नॉलेजेबल दिग्गज दो लॉयर्स होते हैं दोनों साइड के, वो एक ही आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने तरीके से टू देयर कन्वीनियंस। आर्टिकल वही होता है, लेकिन जज को क्या करना होता है, उसको अपनी कॉमन सेंस और अपनी जूरिस्प्रूडेंस लगा के
अल्टीमेटली ये देखना लगता है कि इनमें से कौन आदमी सही बोल रहा है और दूसरा आदमी केवल इसका यूज नहीं मिसयूज कर रहा है। तो एक तो कोई गलत बोल ही रहा है, इसीलिए अल्टीमेटली जो फैसला देता है तो वो ये कहता है कि मुझे इनकी बात समझ में आई है, इनकी बात समझ में नहीं आई। बट इंटरेस्टिंगली बोथ वर कोटिंग द सेम आर्टिकल। ये स्थिति हमको आदि शंकराचार्य की मान्यताओं के कुछ अंश में ऋषि दयानंद के अंश के साथ देखने को मिलती है। ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, अभी तक उसके बाद में पुष्टि करने वाले तो बहुत लोग हुए, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने त्रैतवाद की अगर संभावना को कहा है, जिसको उन्होंने ईशोपनिषद के मंत्र की व्याख्या दे के कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाता है। इसी का उन्होंने बड़ा अंदर एलोबरेट किया कि एक वृक्ष है, वृक्ष को उन्होंने कहा ये जो है ये प्रकृति है, नेचर है, उसके ऊपर में दो पक्षी बैठे हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर में दोनों बैठे हैं और दोनों बड़े सुंदर, सुपर्णा का मतलब सोने जैसे पंख का उसका एक उदाहरण दिया, और वो दोनों के दोनों उस वृक्ष के ऊपर में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, एक केवल जो है उसके वृक्ष के फलों का स्वाद ले रहा है और दूसरा केवल साक्षी भाव से देख रहा है। अब आप देखिए इस छोटे से एक सिमिली के अंदर में तीन एलिमेंट्स सीधे आगे, जिसको हम तीन प्रकार की अनादि सत्ताएं कहते हैं। अनादि सत्ता क्या है कि वृक्ष जो है ये वनस्पति है, ये प्रकृति है, ये भी अनादि है, ईश्वर नहीं बनाई है। जो परमात्मा है वो स्वयं ईश्वर है ही है, उसी की व्यवस्था से जीवात्मा बनी है, जो उस फल का शरीर रूप धारण करके फल का उपभोग करने की सामर्थ्य रखती है। तो क्या कर रहा है परमात्मा, ना उसको खाने से रोक रहा है, ना उसको उपवास करने से रोक रहा है। इसमें परमात्मा क्या करते हैं, जीवात्माओं को शरीर धारण करा के उनको बुद्धि का संयोग दे के, जो मनुष्य का देते हैं तो विशेष बुद्धि देते हैं, बाकी को देते हैं तो केवल नैमित्तिक बुद्धि देते हैं, और साथ में कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को देते हैं विशेष बुद्धि के कारण। तो क्या करते हैं कि कर्म का फल की मैंने स्वतंत्रता तुमको दे दी, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। सुकर्म करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, दुष्कर्म करोगे तो पूरा दंड मिलेगा। तो साक्षी भाव से देख रहा है, केवल ऑब्जर्वर है। ये त्रैतवाद है। इस त्रैतवाद की पुष्टि बाद में महर्षि अरविंद ने भी की है अपने ग्रंथों में। लेकिन शंकराचार्य जी ने उस समय की, क्योंकि ऋषि शंकराचार्य जी को आयु बहुत थोड़ी मिली, 32 वर्ष की आयु में उनका प्राणांत हो गया। एक ऐसा योगी, ऐसा ऋषि जिसने बचपन के अंदर में इस वेद मार्ग को अपनाया और वेद मार्ग को अपना के केवल 32 वर्ष की आयु में एक इतना बड़ा कार्य कर गया कि जो नास्तिक मत थे हमारे भारत के अंदर, बौद्ध और जैन, एक प्रकार से बौद्ध को तो उन्होंने इस देश से बाहर ही निकाल दिया, और जो वेद एक तरह से लुप्त हो चुके थे उन वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन अगर वो संभवतः जीवित रहते तो उनके जीवन काल में ही इसकी बाद में अन्य तरीके से व्याख्या करते जो उनके बाद में परवर्ती शिष्यों ने की। उन्होंने ही उस अद्वैत के अंदर में कई तरह के अद्वैत बना दिए, फिर कुछ लोगों ने द्वैत कर दिए, उसमें भी विशिष्ट अद्वैत अलग कर दिया, और भी कई तरह के कर दिए। मैं उनकी आज भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये जितने भी द्वैत और अद्वैत और त्रैत, ये द्वैत और अद्वैत में तो डिबेट है, लेकिन त्रैत में किसी तरह की कोई डिबेट नहीं है। तो ऋषि दयानंद जो है वो एक ही चीज को प्रोपाउंड करते हैं कि ये सत्ता जो है ये त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक का मतलब सीधा सीधा है कि इन तथ्यों से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस स्थान पर आदि शंकराचार्य और ऋषि दयानंद के मत में भिन्नता हमको दिखती है। मैं ऋषि दयानंद के मत के उससे अपने आप को उसका अनुयायी मान के उसी की पुष्टि में प्रमाण को पढ़ता भी हूँ, और जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में, आपने जैसे प्रश्न किया, तो जितनी मेरी सीमित बुद्धि है उस सीमित बुद्धि के हिसाब से मैं उसके सामने ये तर्क भी रखता हूँ कि ये तो देखने को मिलता है कि दुनिया जो चलती है वो तीन सत्ताओं के कारण ही चलती है। तो जब ये तीन चल सकती है तो मैं ही ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? अगर परमात्मा और जीवात्मा एक ही होते तो दोनों के गुण भी एक जैसे होते। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा तो नहीं है, बहुत अल्प शक्ति वाली है। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम तो सर्वज्ञ नहीं है, हम तो अपने पिछले जन्म की भी नहीं जानते हैं। हम तो कल क्या रोटी खाई थी हम वो भी भूल जाते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने हमारे लिए कुछ किया हमको याद नहीं रहता।
हाँ, ये जरूर है कि किसी ने हमको गाली दी 20 साल पहले, वो भी हम भूलते नहीं है। वो तो हमारे दिमाग में रजिस्टर होती है, वो तो मानव स्वभाव है। लेकिन अच्छा किसी ने कितना मेरे लिए बोला वो हमको नहीं याद रहता, क्योंकि भूलने का स्वभाव दिया। तो जब जीवात्मा के कितने ही लक्षण जो परमात्मा से भिन्न है, तो कुछ साधर्म के कारण कि दोनों निराकार हैं, उस निराकार के कारण हम अपने आप को ब्रह्म कहने लगे स्वयं। तो ब्रह्म तो हम नहीं है, हम तो ब्रह्म की निर्मित ही है। इसलिए इस विषय पे मैं बड़ी विनम्रता से आदि शंकराचार्य के साथ भी थोड़ी मत भिन्नता रखता हूँ। अच्छा, पर इस विषय में आप कभी दूसरा व्याख्यान निर्धारित करेंगे तो मैं बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण बताने का प्रयास करूंगा। आज तो मैं केवल इतना ही उत्तर दे के अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ कि ये जो अद्वैत और त्रैत है, इसके अंदर फंडामेंटल डिफरेंस है। और ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, ये इसके फंडामेंटल जब तक हमको क्लियर नहीं होंगे तो हम उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए मैं आप ही से ही अनुरोध करूंगा कि आप ईशोपनिषद बहुत छोटा सा उपनिषद है, मेरे उसके पास कुछ ही मंत्र है, उन मंत्रों को एक बार पढ़िए और उसकी व्याख्या को पढ़िए, तो आपका हृदय स्वयं सोचने के लिए बाध्य होगा कि हाँ, वास्तव में 3 प्रकार की सत्ता है। नेक्स्ट और प्रश्न। Anybody else has a quick question? Can I add just a footnote? Yeah. हाँ, प्लीज Quick डॉक्टर footnote. वेलकम। अनिल खाटे। Yes, एक थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ कि आपने ईशावास्य उपनिषद का नाम लिया। नहीं साहब, ये जो श्लोक आप बता रहे हैं ना, वो मंडूक उपनिषद में है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्य विचाकशीति। ये मंडूक उपनिषद के 3रे अध्याय का श्लोक है। थैंक यू सर। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, आई मे बी मिस्टेकन। मुझे ऐसा ख्याल था कि शायद ये ईशोपनिषद में है, या हो सकता है, आई मे बी मिस्टेकन। ये श्वेताश्वर, नो प्रॉब्लम, ये गलती हो सकती है। हाँ, वेद में भी आया है और दूसरी उपनिषद में भी आया है। आई स्टैंड करेक्टेड। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आया है। अच्छा, Mr. Anand, you want to say something, and Mr. Vadva has a comment. Mr. Vadva? योगेंद्र, Sir, you have stopped my video. No, you start. Oh, I did. No, you start. You can start. योगेंद्र जी बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी। मैं इस विषय में ये केवल ये कहना चाहूंगा कि अद्वैतवाद के साथ केवल स्वामी दयानंद का ही मतभेद नहीं है। अगर रामानुजाचार्य का और आप मध्वाचार्य का की फिलॉसफी का अध्ययन करें तो वहां भी आप कुछ ना कुछ अंतर पाते हैं। मगर जितने भी हमारे यहाँ आचार्य हुए हैं उनमें जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सब के सब ईश्वर को ओमनी प्रेजेंट मानते हैं। ईश्वर को सब के सब जिसको हम कहते हैं सर्वज्ञ मानते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स को भी हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। आपने योगेंद्र जी बिल्कुल सही कहा। मैंने आज, क्योंकि मैंने बोला ना कि टाइम नहीं है, इसलिए मैंने उस पर एलोबरेट नहीं किया। जब मैं द्वैत और अद्वैत की बात कहता हूँ तो मत यही है कि मत भिन्नता है, तभी तो ये बात हो रही है कि अद्वैत में भी कई अलग अलग सोच है और द्वैत में भी अलग अलग हैं। तो जब उन चीजों में कई मत भिन्नता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्य का अन्वेषण कहीं थोड़ा अधूरा है। नहीं, because we will talk about it. We'll arrange a separate presentation on this. Anand ji, you had some comment? You had जी, thank you. एक तो अतुल जी मेरे मित्र हैं यहाँ पे। अतुल जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ जी, I am very intently listening to your lecture and rejoinders by other connected people, erudite people. I just wanted to introduce myself. I am Atul Sehgal from New Delhi, India. I am one of the founder members of local Arya Samaj Vasant Kunj here, and now actively engaged in Ved Prachar, both in English language and Hindi language. Ravi Dev Gupta ji is my friend, philosopher, guide and guru. I should put it that way. And just I wanted to say something on the question posed by Shri Deshpande about Advaitvad.
in today's world, there are a lot of educated, rather very highly educated people, and a large population of such people who have embraced this philosophy of Advaitwad. And not only they have embraced it, they zealously propagate it also, in spite of the fact that it is contrary to the core message of Vedas, as clarified and presented by Swami Dayanand. So I would strongly urge you to organize another lecture on this subject, so that this should be done very soon, because people's fundamentals get duly cleared. Yeah. Thank you. Okay. No, that's good. No, that is what I also, you see, I raised this question from the angle of Patanjali Yoga Shastra. You know, that is what and that's why I got little confused there. That is, the whole idea of Ishvara Pranidhan is going to the ultimate one supreme being, you know, one pure consciousness. And that's why I got a little confused that how do you reconcile these Dvaita, number one, under Veda's messages, and lot of things which Maharishi Dayananda Saraswati talked about is how to live life. You know, you have, Arya Samaj has its 10 principles, its own 10 principles, right? Arya Samaj has that. How to get out of all that and focus on Vedas as the ultimate source of knowledge and worship of one supreme being. You know, I mean, how do you reconcile these thoughts? That was my point. So we should, Dr. Bhatia, I think we should work on it. And Gupta ji, you suggest a title, right title for this, and we'll do it very soon. Yeah, all this. Okay. Yes. Anybody else has any comments? Yeah. Yeah, I wish to thank you for organizing this event. I really enjoyed it. And I think you should have more of such session, and particularly of Sri Ravi Gupta ji. He has presented this matter very lucidly, and I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you. I thank you, Anandji, for your generous comments. So Gupta ji, I want to profusely, personally, and for our group, thank you for educating us, you know, for making us aware of all these philosophies and making our thinking somewhat better than what is today. So I want to thank one and everyone. All this, let us spread this message to your friend circle. Try to get more people involved in this exercise, and ultimately we have to share this knowledge to the whole humanity. So that's the purpose of this. So thank you once again, Gupta ji. Thank you everyone. Anybody else has comment? I will end. Otherwise we'll end. मेरा ख्याल है रमेश जी, हमको अपना क्लोजिंग जो करना चाहिए वो शांति पाठ से करना चाहिए आज। हाँ जी, जरूर करो आज। हाँ, तो मैं अपने मित्र अतुल जी से निवेदन करूंगा कि शांति पाठ कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अतुल जी। जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम। थैंक यू।